Okay then. So as I told you, in a procurement cycle, it starts with the determination of requirement. So in what will happen actually in the determination of requirement is that you must know, what kind of documents you're going to create, because as a functional consultant, when you learn SAP and when you join in a company as a SAP functional consultant, you must know all these documents. What are the documents which are gonna create in a procurement cycle, because you are gonna work behind these documents only, behind developing these documents only. So right. So the first document, which you are gonna hear in any procurement cycle is a purchase requisition. The procurement cycle starts with creating a purchasing requisition. Who are gonna create purchase requisition? This is an important question. So in some companies, what will happen is it might be having different departments. It might be having a sales department. It might be having a production department. It might be having a finance department. Every department have their requirements. So if sales department needs some things like they need a printer, they need a A4 sheet. So what they'll do is like they do have a facility to create a purchase requisition. Okay. So there is one way like if there is a purchase department, who can reach all these departments and ask them like what are your requirements. They can gather all the requirements and they can create a single purchase requisition on behalf of every department. That is one case. And the other case is each department can create one purchase requisition. Okay. So what you are gonna do as a functional consultant means you are not gonna create any purchase requisition. So you are providing a solution. You are suggesting a client based on their business scenario. Do you want to give authorization to each and every department to create a purchase requisition? If that company needs like no, every department shouldn't able to create purchase requisition, but a procurement department can only create a purchase requisition means that kind of requirement you can gather and you can customize your purchase requisition and you can you can assign it to your purchasing department only. You can't, the sales department can they can't access to create purchase requisition. Do you understand? Like if they do have SAP installed in the system, but they won't be having any access to create purchase requisition. If we have provided access to each and every department to create purchase requisition, then each and every department can go and can create a purchase requisition. Like, yeah, from my department, I need these kind of things. From production departments, if they need kind of raw materials, what it might be a liquid, it might be a chemical, it might be a paper, it might be a foot mat, it might be anything. It might be a door, it might be a handle, anything. It might be a light, it might be a wire, anything it might be, but it should come in a proper way. So that proper way is called as purchase requisition. When you are suggesting your ERP to a customer means, if they might have any kind of system in their existing company, in some companies, they won't be called any purchase requisition there. Simply, they will pass a paper, a Excel, a paper, where it will be, where it will be filled like serial number and your requirement and quantity. The paper will be passed to each and every department. That the department will write the requirement in the paper, and that paper will be moved to each and every department. So that kind of scenario you might have seen. But in order to upgrade your, in order to upgrade yourself, in order to process the things, smoothly. So you must need a ERP. You must need a smart ERP which can do these things professionally. Professionally means like what with the by using your computer. So by using your computer, by using your SAP application. So the thing is, what you can do is, if you need any requirements, you're gonna create purchase requisition. That is the first step. Any department can do. So what is gonna happen? This is only the document which can be created in the first stage. Okay. The second stage, source determination. I have told you the source determination. Can anybody tell me what is source determination? Any one of you? Any one of you, please, if you can know what is source determination. If you can explain me in Hindi also, that's fine. आपको अगर समझ में आ गया कि ये है source determination, you can explain me in any way, or you can type in a chat box also. So vendor, anybody else? So yeah, as I got some answer, maybe most of you don't want to talk. So the thing is like source determination is finding a supplier or a vendor, finding a suitable
service provider, or a supplier, or a vendor is your source determination. In source determination, what actually going to happen is whatever the requirements has been gathered in a purchase requisition, we have to identify a source who can provide all these requirements. The requirements which came up from each and every department, where I can get these things. That is that is the challenge for the purchase department, who have to look for a source who can provide all these things. So the source determination. So in source determination, what kind of a document will create is this purchase requisition can be forwarded to different sellers. As I told you, see, I need some groceries. Okay. So what I did is, from my company, I have forwarded one purchase requisition. Like I told, I told DMart, I have reached Vijeta, I have gone to Ratnadeep and Big Bazaar. So consider these four, malls are, or the, all the grocery providers you can find. So what I did is, I need so much requirements of groceries. Okay, for my you can call it, it's my big 5-star restaurant or a 5-star hotel. So I need some groceries, and groceries. So I wanted to reach, these four. I wanted to get a quotation. So what I'll do is, like, I'll send my purchase requisition, my requisition to them, and I'll I'll say them to, like, send a suitable quotation from yourself. So what they will do is, like, these vendors or the suppliers, or these so-called, your service providers, what they will do, they will send you a quotation like, sir, for your items, for your 10 kgs of sugar, or for your 100 kgs of sugar, I can offer this price. For your 100, for your 100 liters of oil, I can provide this price. So these kind of, prices, they'll provide. It's not like, we have already created a purchase order. We haven't created a purchase order till now, but we just forwarded our requisition to them by saying that, this is the requirement, we have. For this requirement, how much you're going to charge? What kind of discounts you're going to give to my hotel or my restaurant? So what will happen is, like, everybody will get back with a quotation. They will send a quotation to us, to whatever the company it is, to whatever whoever is running this restaurant, what they'll get back to those purchasing, department or the procurement department by saying that, okay, we can offer all these things, with this price. We can give you a discount of 10% on your MRP. And another will say, like, Ratnadeep will say, like, we can't provide you 10%, but we can provide you 8%, because, our products will have a great good quality. DMart will come and say, like, oh, no, I can provide you 20% of discount on all your products, on MRP. So these kind of quotations, they'll submit. After submitting of your quotation, what will happen? Now the next stage is your vendor selection, So what kind of document is created in the first step is, like, purchase requisition. In the second step, you have found a quotation which we got from the vendors. In the third step is your vendor selection. Please understand these scenarios, in each and every scenario, what is going to happen, that you should understand before entering into creating all these things. Again, I can show you directly how can you create a purchase requisition, how can you create a purchase order. It's a simple transaction. ME51, if you can type, in a SAP, your purchase requisition screen can come, and you can fill your requirement, and that you can save. Document will be saved. That's it. But before that, you should know, what is a purchase requisition and when it can be generated and who can generate it. What is the functioning of what is actually the characteristics of a purchase requisition, that you must know. So now the next step is our vendor selection. What will happen in vendor selection? The name itself says you will choose a vendor among those 4, 5, 10, whatever the vendors have submitted the quotation. What you will do, you will select a suitable vendor among them. What are the parameters? What might be my parameter? My hotel is kind of thing, who are looking for a vendor who can provide me these things in a cheaper price, then I will choose a DMart. If I am kind of I'm kind of a client, who wants who wants a quality, who don't want to look into discounts, but who actually needs a quantity or a good service, means I can choose another. Maybe I can choose Ratnadeep. So these kind of things may happen, it's based on your criteria, the company's criteria, how they wanted to select their vendors. So in vendor selections, what will happen is, like, in those quotations, among those quotations, one quotation will be finalized. For the remaining quotations, you will send a cancellation, or it may be a small mail, right?
by saying like, okay, thank you for your quotation, but we have selected one of your competitive supplier or the vendor, as our partner for this kind of requirement. So that kind of a mail you can forward to them by saying that, yeah. So that is called as a maintain RFQ. In source determination, what kind of thing will happen is, I told you, quotation will quotation kind of document, which is called as RFQ. Remember this, a request for quotation. This is the document which you're going to create in quotation, RFQ, request for quotation. The transaction for is ME41N. So you don't need to remember these transactions anyhow. We are I'm gonna discuss them each and everything briefly in the particular sessions. Okay. So you just wanted to know, what kind of document gonna create behind each and every department. Okay, each and every cycle. So in source determination, the document which is gonna create is RFQ, request for quotation. You are requesting your vendor to submit a quotation. Okay, this is kind of a document. So in vendor selection, what you're gonna handle is like, you will do a transaction called maintain RFQ. In this maintain RFQ, what will happen is like, among those vendors, you will select a suitable vendor and you will reject remaining quotations by sending them a suitable message like, obviously we know that you are a you are a competitive vendor and you are a good vendor, good supplier of all these groceries, but we have found a suitable supplier for my requirement. Like that kind of a notes you will be sending. That kind of notes also you can customize in SAP. Okay, so that will happen in vendor selection. Maintain RFQ will be happening there. So the next step is like PO processing. In PO processing, what is going to happen? You are going to create a purchase order against that particular supplier which you have chosen in vendor selection. Okay, in vendor selection, you understood like, okay, I'm going to choose DMart. I'm going to choose Ratnadeep as my partner for this requirement. Okay. So now what you have to do is, to confirm that quotation, you have to release a purchase order. Purchase order is a document which says like, yeah, you can supply me these materials in these quantities. So purchase order literally says to a supplier like, oh, please, you can supply me these quantities to this delivery date. Okay, I want these things, these kind of quantities I want, and these are on this date. So these kind of things, will be there in purchase order. Purchase order is an official document, which will go to the client, which will go to the supplier, and which says like, yeah, I need this requirement. Please send this, requirements based on the accepted or the agreed values, because Ratnadeep has promised that I can give you 8% of discount on MRP and I can provide you the best quality. So we have agreed those conditions and we want you to provide me this. So we have released the purchase order now. So that is called as your PO processing. In PO processing, what will happen? Purchase order will be created. In the next stage, PO monitoring. What will happen in a PO monitoring is, a PO will be monitored. I have given you a very good example of a Flipkart. Like if you can go through your Flipkart and if you can see your orders, whatever you have ordered in your Flipkart, if you can see, whenever you order something in a Flipkart or Amazon, what will happen? First, it will shows like the order is created. Order has been successfully placed. This is the first notification you will get. And what will happen in the next stage? It will say like your order is processed by the seller. That is the second stage. I'm not saying like this is your procurement cycle, but I'm saying like, what is the thing called PO monitoring? What kind of monitoring activity you will do? Means you will track the supplier. You track the seller or the supplier, how he is processing the product, So we will see like in your order history, we can see like seller is processing your order, and next the seller has shipped your order. That is the next step. And your order is in transit, and finally you can see like your order is out for delivery, and then it will shows like your order has been delivered. So these kind of stages you can see in a PO monitoring. Also similarly, these kind of stages may happen in a PO monitoring. What will do? You'll monitor your PO. In that stage also you may find different documents based on the requirements. Okay, so the major documents which you have to remember is, one is purchase requisition, and the second document is RFQ. Remember this. These are the stages. First the document, the first document which any enterprise will create is a purchase requisition. The second document any enterprise will create is RFQ, request for quotation.
In some companies, it may not do, because see, we can't say like every time, RFQ can be created. Sometimes it won't be, because if I have created a purchase requisition, if I know that I have to purchase from Ratnadeep only, I don't want to get any quotations from anybody. So I don't need to, that company won't be creating RFQ for that particular requirement, because we know that where to buy. If you have multiple sellers, who is having some competitive prices, then only you're going to create RFQ. But if you don't have any competitive seller or the supplier in the market, if you have only one supplier, then you have to reach to the only one supplier there. Okay. See, what kind of scenario will be there, where RFQ is needed? Means simply, see, I'm having a company. My company needs electricity. I have to buy electricity from where? Do you find so many vendors for electricity? No. You will have to buy electricity from the government only, electricity department. When it comes to Telangana, you find vendor as a TSS PDCL. Okay. So TSS PDCL is your Telangana State Board of Electricity Supply, who can going to supply you electricity. So you know that you don't need to create RFQ for that simply. Okay. So you don't need to get some quotations, because you know that this electricity department is only the department who can provide you electricity. And, they will be giving you the same price, whatever the price they are providing to the other industries, they won't be having any different prices. But if you have any kind of quotas, which government has offered, based on that quota, you may get concession, but it will be same. Because if you can see, every individual home in Hyderabad will be having same kind of unit rates for, if your consumption of electricity is below 100 units, you will be charged at 3.25 something. If it is crossed at 100 units, you will be charged 5 rupees. If it is crossing 150 or 200 units, it will be 10 rupees. So this might, there will be this kind of scenario. It will be applicable to every home which is in Hyderabad. So you can't negotiate with them. You can say like, I'm a poor guy, please give me negotiation. Means they won't give. It will be having the same price for everybody. So that kind of, if you have any fixed vendor, you don't need to create any request for quotation for that. Simply you can buy it directly from him. If you have any agreed prices already, or if they are providing any standard prices, you don't need to negotiate with them. They'll be providing you same price. Okay. So that is what will happen. So anyhow, first document is your PR. Second document is your RFQ. Third document will be purchase order against that RFQ. If there is no RFQ against the PR, you can create a purchase order. Remember this. Okay. So now, after the purchase order, what is going to happen? Goods receipt. You can see here, right? It is an inventory transaction, goods receipt. The transaction for SAP, it is called as a MIGO. We will always call it as MIGO, MIGO. The transaction is. If you can type MIGO like Google, in Google, if you can type YouTube, what will happen? The YouTube application will open and you can see the videos. Whatever the topic you need, if you can type the topic, particular topic, you can get particular topic from the research results, right? So even as I told you, you will be having a command prompt, command box in your SAP. It is like a Google search. In that command, in that command box, if you can type MIGO like MIGO transaction, so a goods receipt document will be open where you can post your goods receipt. What is goods receipt actually? See, all these documents, as you're not gonna work in a manufacturing company as a purchasing officer, but you're going to design these documents for that particular kind. If Tata company has reached you by saying like, my business process is like this, I want SAP to be installed in my company so that my processes in my company can run smoothly. So what we have to do as a consultant, we have to go to Tata Group and we have to study their business process. We have to say that, sir, we do have this kind of cycle in SAP. This cycle can be suitable for you. We are recommending this kind of circle. We are recommending a purchase requisition like RFQ and PO, this kind of scenario. This scenario, you have to explain them. So to understand these cycles, you have to have this background knowledge. Okay. So next, as I told you, a goods receipt will be created. Why goods receipt will be created? You have created a purchase order and you have sent that purchase order to the supplier. What supplier will do? Supplier, after getting purchase order, he will process the, whatever the quantities he have ordered, that products, he will send to you. Okay. So after sending, what will happen? You will receive it in your location. You will receive them and you will post a goods receipt by saying that, yeah, I have received these quantities. What will happen when you post a goods receipt means there will be a accounting document will be created when you post a goods receipt. This is an important point. In interviewer will ask you,
what will happen when you post a goods receipt? You have to say, when I post a goods receipt, two documents will be always created. One document is a material document which says that I have received these kind of materials in these quantities. One is a material document. The other document is your accounting document. That accounting document will says like, we have to pay this vendor these prices, the prices which we have agreed on purchase order. Okay, why the accounting document has been created means the finance department can only take that document as a reference and they can process the payment to the supplier. Okay, it's not like always whatever the PO price is there, it should be same in GR also, in invoice also. No, what will happen is, suppose in PO I have requested them some 100 quantities of something. Okay, for that 100 quantities of something, they charge, they told like this, for this 100 quantities of take an example, like, I have ordered some tube lights for my for my office, some 100 tube lights from that particular shop. Okay, the shop has sent me 90 lights only, by saying that, sir, we do have this 90 stock only for now, I can send you the remaining 10 later. So what this how this accounting department will be going to know that we have received only 90 quantity of tube light means, by looking at the material document, by looking at the accounting document, they will be knowing. In material document, what they will do is like, in goods receipt, while that the goods receiver, whoever it is, it might be a purchase department, it might be inventory department, it might be a sales department also. So whoever receiving these quantities, what they will do, they'll post a goods receipt by saying like, against all these 100 quantities in a purchase order, we have received 90 quantities. Okay, that kind of document I'm going to post it. So what is going to happen? I can see some comments, here. I can explain these things, at the end, So don't expect me a reply, during this. If you can't able me clearly, you can say, you can unmute yourself and you can say. But if you want me to repeat again, then I can do this in the end. And if somebody has joined in the late and who wants me to explain things from the start, I'm not going to do this, because I'm not going to waste time of each and every guy who has joined earlier. So please make a habit of joining this class, earlier, at least 5 minutes or 10 minutes, because, I joined this class 10 minutes before, but I can see only 2 to 3 guys there. So, you should have, when you're really interested in SAP, you should, you should have this kind of enthusiasm, like, I should join this class. I should not miss any single topic, because I don't want to waste, time of, the people who already listened this topic. Okay. So, yeah. So let me go back. My keyboard always stucks. Okay. Yeah. So where we are? So we are at goods receipt. So goods receipt is a document which says like, yes, I have received this much of quantities. So what documents will be created in goods receipt is like 2 kinds of documents will be created. One is a material document, second is an accounting document. That accounting document or the material document will be taken as a reference. And the next stage is what will happen? Invoice verification will be done. What is the invoice verification? Because the whoever has taken the goods, he'll be having an invoice with him. That invoice will be submitted. One copy will be submitted to the delivery to the inventory department. One can be submitted to the payments finance department. So that finance department will verify that invoice, and they will post in SAP by saying that yes, we are going to process this invoice. There won't be any conflicts. If they have any conflicts, like the inventory department has said, like, okay, we have received this 90 quantities, but I assume that some of them are not functioning properly. So don't pay total invoice, hold back some amount. So these kind of anything will be there, that will be handled over in the department, the finance department. So these kind of things will be verified there in invoice verification. And after verifying the invoice will be posted. After posting the invoice, then what will happen immediately? That supplier will be paid. The payment processing will be happen. Okay. So that is the last stage in your procurement cycle. Do you understand? So, yeah. So now I'll come to the Hindi part, because all of you may not understand me properly in English. So simply I can say in 2-3 words, like,
सो एक चीज याद रखिए, ये पूरे प्रोक्योरमेंट साइकिल के अंदर जो डॉक्यूमेंट्स हमारे पास क्रिएट होते, पहला डॉक्यूमेंट है परचेज रिक्विजिशन, याद रखिए पीआर बोलेंगे इसको। पीआर कंपनीज में जो है पीआर, पीआर शॉर्टकट यूज करेंगे, पीआर, पीआर नथिंग बट परचेज रिक्विजिशन, याद रखिए इसको। पीआर मतलब प्रेस रिलीज नहीं है, ये परचेज रिक्विजिशन है। सो द सेकंड इज आरएफक्यू, रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन। सो कोटेशन हम लोग किसको भेजेंगे? कोटेशन हम सप्लायर्स को भेजेंगे, बस सेइंग देखो भाई हमारे को ये चीज़ें चाहिए, तो आप जो है आपके कोटेशन भेजिए, आप आपके जो प्राइसेस है ना, आपके जो कंडीशंस है, या आप जो डिस्काउंट्स हम लोग को देना चाह रहे हैं, सो प्लीज मेंशन इन दैट कोटेशन। सो रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन दूसरा डॉक्यूमेंट है प्रोक्योरमेंट साइकिल के अंदर। अगर आपके पास कोटेशन आ गए, पूरे 4-5 कोटेशन आ गए, या 10 कोटेशन आ गए, या 15 कोटेशन आ गए, 20 कोटेशन आ गए, कोटेशन आने के बाद क्या करना है आपको? वेंडर सिलेक्शन में ये पूरे कोटेशन में से एक कोटेशन को चूज करना है, चूज करके क्या करना है? उसको परचेज ऑर्डर रिलीज करना है आपको। परचेज ऑर्डर क्या बोलता? परचेज ऑर्डर इज ए डॉक्यूमेंट हु सेज लाइक, या तुम्हारा जो है कोटेशन को हम लोग एक्सेप्ट कर लिए और मेरे को जो है इतने क्वांटिटीज ऑफ आइटम्स चाहिए, सो ये जो है रिक्वेजिशन जो है ये परचेज ऑर्डर हम लोग को प्रोसेस करते हैं वो पर्टिकुलर वेंडर को, ठीक है। सो नेक्स्ट, परचेज ऑर्डर क्रिएट करने के बाद क्या होता है? उसके बाद परचेज ऑर्डर को ट्रैक करते हैं हम लोग। अरे भाई उन्हें भेज रहा नहीं भेज रहा, क्या करते? 100 बार फोन कर दे उसको, अरे भाई मैं पीओ भेज दिया ऑलरेडी, आइटम आ रहे नहीं आ रहे, कब आ रहे हैं? आ रहे हैं तो कब आ रहे? शाम तक आ रहे हैं, सुबह तक आ रहे हैं? नहीं भाई शाम तक आते बोलता। फिर अपन दोपहर में रिमाइंड करते हैं उसको, भाई क्या हुआ, तुम भेज रहे नहीं भेज रहे? सो दिस काइंड ऑफ थिंग, द ट्रैकिंग, आप जो ट्रैक करते रहते ना, इसको हम बोलते हैं पीओ मॉनिटरिंग। उसके बाद क्या होता? आइटम्स लेके आ गया उन्हें, आइटम्स लेके आने के बाद तुम क्या करते? हाँ रिसीव्ड बोल के मार देते, तो इसको क्या बोलते हैं अपन? गुड्स रिसिप्ट बोलते हैं। एक डॉक्यूमेंट हम लोग पोस्ट करते हैं, दैट इज डॉक्यूमेंट, द डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड एज गुड्स रिसिप्ट। तो पहला डॉक्यूमेंट था पीआर, दूसरा डॉक्यूमेंट था आरएफक्यू, तीसरा डॉक्यूमेंट था परचेज ऑर्डर, फोर्थ डॉक्यूमेंट है गुड्स रिसिप्ट। गुड्स रिसिप्ट डॉक्यूमेंट पोस्ट करने के बाद क्या होता? इनवॉइस पोस्ट होता। कौन करते? इनवॉइस पोस्टिंग पेमेंट डिपार्टमेंट वाले करते। इनवॉइस पोस्ट होने के बाद फिर पेमेंट कर देते लोग। तो कितने डॉक्यूमेंट्स हो गए यहाँ तक जो रिमेंबर करना है आपको? एक हो गया पीआर, दूसरा हो गया आरएफक्यू, तीसरा हो गया पीओ, चौथा हो गया आपका जीआर जिसको हम गुड्स रिसिप्ट बोलते हैं, और लास्ट वाला हो गया आपका आईआर जिसको इनवॉइस रिसिप्ट बोलते हैं अपन, याद रखिए इनवॉइस, ठीक है। सो फर्स्ट वाला पीआर परचेज रिक्वेजिशन, सेकंड वाला आरएफक्यू रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन, थर्ड वाला परचेज ऑर्डर जिसको पीओ बोलते हैं हम लोग शॉर्टकट में, और चौथा वाला जीआर जिसको हम क्या बोलते हैं? गुड्स रिसिप्ट बोलते हैं, एंड फिफ्थ वन वी विल कॉल इट एज इनवॉइस और इनवॉइस रिसिप्ट बोलते हैं, ठीक है। सो एनीबॉडी हैव एनी डाउट्स अमंग दिस? तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे, अगर यहाँ तक समझ में आ गई बोले तो। जी अशफाक भी का एक सवाल है इसमें जी, वो बोल रहे हैं कि व्हाट इज द सैप नेम फॉर पीआर? पीआर को पीआरएच बोलते हैं एसएपी में, बट ट्रांजैक्शन जो है पीआर को MI51, ठीक है, बिकॉज यू नो मैं क्या, देर आर सो मेनी ट्रांजैक्शंस। MI51 एक है जिससे जो है हम लोग पीआर क्रिएट करते हैं, MI41 है जिससे हम लोग आरएफक्यू क्रिएट करते हैं। एसएपी में टर्मिनोलॉजी पीआरएच बोलते हैं उसको, मगर जो ट्रांजैक्शन टी कोड यूज करते हैं, मैं बोला ना एसएपी के अंदर हर चीज के लिए एक टी कोड है आपके पास। अगर मैं आपको बोलूँ अरे पीओ बना दो बोले, तो जाके मैं पीओ बोल के टाइप कर दूं, नहीं आता वहां पे कुछ भी। क्या करना आप वहां पे टी कोड ट्राई करना, MI21N बोल के मारे तो पीओ ओपन होता। अच्छा सो भाई मेरे को जरा कहीं को भाई पीओ मारे तो भी आना ना, गूगल में अपन क्या मारे तो वो आता भाई बोले तो। यस, एसएपी डेवलप करा मैं आपको जैसा बोला। एसएपी पहले क्या बोलते थे इसको? एसएपी गुई रहता था, गुई बोलते थे इसको। एसएपी में पहले क्या होता था, एसीसी में क्या होता था बोले तो सिर्फ आपको ट्रांजैक्शन मारे तो मालूम होता था वहां पे, खाली पीओ बोल के मारते कुछ भी नहीं आता। मगर फियोरी जो है S4 हाना जो डेवलप हुआ अभी, उसके अंदर क्या बोलते हैं? फियोरी बोलते हैं। फियोरी बोलते तो क्या है, एक एप्लीकेशन आपके मोबाइल में भी इंस्टॉल कर सकते हैं। एसएपी पहले क्या होता था, सिर्फ आप कंप्यूटर पर भी इंस्टॉल करना पड़ता, कंप्यूटर पर ही चलाना पड़ता, पीआर बनाना बोले तो भी, पीओ बनाना बोले तो भी, आरएफक्यू बनाना बोले तो भी। मगर अगर आप आज के जमाने में एसएपी अगर लेटेस्ट वर्जन यूज कर रहे हैं, आप आपके मोबाइल से भी पीओ बना सकते हैं, आप आपके टैब जो यूज करते हैं आप टैब में भी बना सकते हैं, कंप्यूटर में भी बना सकते हैं, आप जो है स्मार्ट वॉच आपके पास है तो उससे भी बना सकते हैं। तो वी हैव फैसिलिटी, इसके पास इतने सारे फ्लेक्सिबिलिटी है। आप एक वेबसाइट में जाकर लिंक क्लिक करके भी आप पीओ बना सकते हैं, एक लिंक भी बन सकता है एक पीओ। ऐसे भी पहले ऐसा नहीं था, सिर्फ जो है आपको क्या होता था, एप्लीकेशन होता था, सिर्फ वो एप्लीकेशन अगर आपके पास है तो इसे आप यूज कर सकते हैं। मगर अब फियोरी आने के बाद क्या हुआ, इसे वो आने के बाद वो लेटेस्ट है, अभी चल रहा, सिर्फ आपको एक लिंक रहता है, वो लिंक क्लिक करो तो सीधा आप क्या करते, फियोरी में ओपन होते। फियोरी वो स्क्रीन पे मैं आपको दिखाता हूँ, जब मैं क्या बोलते एटलीस्ट एक 50-60% कवर होने के बाद आपको फियोरी जब समझ में आता। तो पहले हम लोग को क्या है, यहाँ से जाना पड़ता, पहले स्टार्टिंग से जाना पड़ता। सो लाइक
फियोरी में क्या होता है, आप सर्च बॉक्स में पीओ परचेज ऑर्डर बोल के मारो तो सीधा परचेज ऑर्डर ओपन होता, सीधा परचेज ऑर्डर के डॉक्यूमेंट दिखते रहते आपको सीधा सीधा। मगर आप एसएपी के जो स्क्रीन आप इंस्टॉल कर ले रहे हैं अभी जो ट्रेनिंग प्रैक्टिस के लिए, वहां पे आप पीओ मारे तो कुछ भी नहीं आता, सीधा MA21 मारना पड़ता। तो क्या क्या ट्रांजेक्शन है ये, आई एम नॉट गोइंग टू से दिस स्टेज, ये स्टेज में आपको बोलने की जरूरत नहीं है ये ट्रांजेक्शन। तो ट्रांजेक्शन कब बोलना है आपको जाके, जब आप परचेज ऑर्डर के बारे में डिस्कस करके परचेज ऑर्डर क्रिएट करते रहते हैं, मैं आपके सामने दिखाते रहता हूँ। व्हेन आई एम गोइंग टू टेल यू लाइक ये परचेज ऑर्डर का ट्रांजैक्शन है MA21 है ना, आपको ऐड करना पड़ता। सो पीआर को जो ट्रांजैक्शन हम लोग यूज करेंगे, सो पीआर को जो है हम क्या करेंगे, परचेज रिक्विजिशन को MA51 यूज करेंगे हम, और क्या बोलते RFQ को याद रखिए MA41 यूज करते हम, पीओ के लिए MA21 यूज करते, जीआर के लिए MIGO यूज करते, और परचेज सॉरी लास्ट में इनवॉइस के लिए MIRO मीरो बोलते उसको, मीरो ट्रांजैक्शन, मीगो मीरो, पीओ के लिए MA21N। सो ये ट्रांजैक्शन ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस सिंपली मैं जैसे बोला याद रखिए इसको, यू नो नीड टू नोट इट डाउन। बस लेटर इन द लेटर पार्ट ऑफ माय क्लास आई कैन एक्सप्लेन यू ऑल ऑफ देम ब्रीफली, क्या टी कोड्स आपको याद करना रहता। पीओ में बहुत सारे टी कोड्स रहते, फिर पीओ में MA21N रहता जिसको पीओ बनाने का रहता। अच्छा पीओ में गलती कर दिए तुम, पीओ में क्या करे भाई, मेरे को 10 ट्यूबलेटा होना बल्कि लिखे, मगर मैनेजर के पास मैनेजर बोला अरे दीवान है 10 नहीं होना है, अपने को 29 होना है बल्कि बोला हमने, तो क्या करना पड़ता आपको, पीओ एडिट करना पड़ता। सो व्हेन यू वांटेड टू एडिट ए पीओ, फिर क्या करना, अरे भाई वो कैंसिल नहीं कर सकते तुम उसको, क्या करना है पीओ को एडिट कर सकते। वी डू हैव ए ट्रांजैक्शन MA22N है। MA22 में क्या क्या करते हैं, हमेशा कभी भी 1 क्रिएशन रहता है, इसे भी याद रखिए, 2 एडिट रहता। देखो RFQ बनाने के लिए MA51 यूज कर रहा हूँ, क्रिएशन एडिट के लिए 2 यूज करना MA42 याद रखिए। अगर परचेज रिक्विजिशन बनाना है तो MA51 यूज करता हूँ, एडिट करने के लिए 52, और एक रहता डिस्प्ले करने के लिए, भाई मेरे को एडिट करना नहीं है, खाली पीओ जो बनाया तुम देखना है, तो कैसे दिखूं मैं, MA23 मारे तो पीओ दिखता है आपका, उसको डिस्प्ले पीओ बोलते। ये ट्रांजैक्शन बहुत सारे रहते हैं दैट आई एम गोना डिस्कस इन द नेक्स्ट सेशन। ओके अभी ये स्टेज के अंदर जरूरत नहीं है आपको समझने की। सो एनीथिंग एल्स अगर आप लोग मालूम करना है यहाँ के अब तक के जो साइकिल थी इसके बारे में। I can see some comments here. What is SAP in the name of PR? Sir, repeat one more time. Sourcing department enters work. Nothing for now. That's very good. So now, अच्छा तो भाई कितने टाइप ऑफ प्रोक्योरमेंट रहते हैं बेसिक प्रोक्योरमेंट में, अभी स्पेशल प्रोक्योरमेंट में नहीं आए आप लोग। मैं जो है आपको क्या बोला, अब तक हम लोग बेसिक प्रोक्योरमेंट सुन रहे हैं हम लोग, स्पेशल प्रोक्योरमेंट अलग है। कोई सवाल करे थे लास्ट सेशन में, सो व्हाट इज स्पेशल प्रोक्योरमेंट, वी डिडंट हर्ड ऑफ स्पेशल प्रोक्योरमेंट। स्पेशल प्रोक्योरमेंट इज कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड्स, यू नो नाउ आई एम डिस्कसिंग अबाउट ओनली बेसिक प्रोक्योरमेंट। अब तक क्या देखे थे आप, एक प्रोक्योरमेंट बोले तो क्या रहता, वो प्रोक्योरमेंट में क्या साइकिल रहता, क्या डॉक्यूमेंट्स क्रिएट होते, दैट यू हैव हर्ड। नाउ व्हाट वी आर गोना डिस्कस हियर इज what are the types of basic procurements are there। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं जैसे बोला प्रोक्योरमेंट साइकिल जहाँ से स्टार्ट होगी वहां से वेरी इंपॉर्टेंट है, ईच एंड एवरी टॉपिक आपको याद करना पड़ता है, याद रखना पड़ता है। अगर इफ यू आर नॉट रिमेंबरिंग एनीथिंग, आई एम गोना फॉरवर्ड माय this video record of the session of in the group and as well as the document also। So types of basic procurement, so कितने सारे procurement हो सकते हैं, 2 types of basic procurements है। एक देखिए procurement for stock वर्सेस कंजम्पशन एक है, दूसरा है एक्सटर्नल वर्सेस इंटरनल प्रोक्योरमेंट है। ये दो चीजें क्या है, दो डिफरेंसेस है, प्रोक्योरमेंट फॉर स्टॉक वर्सेस कंजम्पशन। द नेम इटसेल्फ सेज प्रोक्योरमेंट फॉर स्टॉक, मतलब मैं जो है कुछ चीजें खरीदता हूँ स्टॉक करने के लिए, कुछ चीजें खरीदता हूँ साथ ही यूज करने के लिए। राइट समझो, देखो 2 एग्जांपल्स है। ये क्या हो रहा, मेरी ऑफिस है और मैं जो है A4 के 10 बंडला मंगा लिया। कहीं को मंगा लिया बोले तो 10 बंडला अभी यूज नहीं करता हूँ मैं, ये मंथ पूरा चलने के लिए मंगा लेता हूँ, तो आई एम गोना स्टोर देम, स्टोर के लिए मंगा ले रहा हूँ, प्रोक्योरमेंट फॉर स्टॉक। कुछ ट्यूबलाइट्स मंगाया मैं, स्टोर करने के लिए नहीं मंगाया, ट्यूबलाइट चले गए थे लगाने के लिए मंगाया, वो क्या है प्रोक्योरमेंट फॉर कंजम्पशन। तुमने खरीदे लादे लगा दिए, उसको स्टोर नहीं करे आप लेके जाके, तो स्टोर में उसको एंटर करने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे लगा दिए, तो स्टॉक नहीं कर रहे हैं आप लेके जाके उसको स्टोर में जाके बिन्स में नहीं रख रहे हैं उसको, तो क्या कर रहे हैं रिसीव कर लिए आइटम्स को, रिसीव करने के बाद सीधा सीधा जाके लगा दिया आइटम को, तो इट इज कॉल्ड एज कंजम्पशन। आप मटेरियल मिलते हैं कंजम्पशन कर लेना, तो इसको कॉल्ड एज कंजम्पशन। स्टॉक मतलब क्या है, उसको स्टोर कर लेना, इसको प्रोक्योरमेंट ऑफ स्टॉक, प्रोक्योरमेंट फॉर स्टॉक बोलते हैं, प्रोक्योरमेंट फॉर कंजम्पशन बोलते हैं। ये एक फर्स्ट कैटेगरी ऑफ प्रोक्योरमेंट है। सेकंड कैटेगरी ऑफ प्रोक्योरमेंट इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल वर्सेस इंटरनल प्रोक्योरमेंट है। ये एक्सटर्नल प्रोक्योरमेंट क्या है, इंटरनल प्रोक्योरमेंट क्या है, कोई बता सकते हैं इसके अंदर? द नेम इटसेल्फ सेज एक्सटर्नल प्रोक्योरमेंट मतलब क्या है, मैं बाहर से खरीदना पड़ता कुछ भी चीज। इंटरनल प्रोक्योरमेंट बोल तो क्या होता बोले तो कभी कभी जो है तुम्हारे अंदर जो है कुछ मतलब देखो टाटा ग्रुप है, टाटा ग्रुप क्या क्या कर सकता,
टाटा ग्रुप के अंदर जो है पूरे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है उनके पास, टाटा की कार की प्रोडक्शन कंपनी है, टाटा की एरोप्लेन्स की बनाने की रिसेंटली बनाया वाला टाटा की एविएशन कंपनी है जहाँ पे एरोप्लेन्स की बनाते हो। तो टाटा के बहुत सारे ग्रुप्स है। टाटा भी मोबाइल्स भी बनाया, टाटा टाटा नेटवर्क भी प्रोवाइड करा, टाटा डोकोमो बोल के। तो टाटा के पास के टाटा को सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है अब, तो टाटा क्या करा, इन्फोसिस के नहीं गया उन्हें क्या करा, टाटा ग्रुप को यूज कर लिया। टाटा ग्रुप को सा है सॉफ्टवेयर में, टीसीएस है, टीसीएस कुछ इस्तेमाल कर लिया उन्हें। मैं दूसरे के पास क्यों जाऊं भाई। सो दिस इज कॉल्ड प्रोक्यूरमेंट, इंटरनल प्रोक्यूरमेंट। इंटरनल प्रोक्यूरमेंट क्या है, मतलब आपके ग्रुप्स में, टाटा ग्रुप में आता, टीसीएस इज ए पार्ट ऑफ टाटा ग्रुप, टाटा स्टील इज ए पार्ट ऑफ टाटा ग्रुप, टाटा कार्स इज ए पार्ट ऑफ योर टाटा ग्रुप, टाटा प्रोजेक्ट्स बोल के जो प्रोजेक्ट्स करता गल्फ में और इंडिया में, जो प्रोजेक्ट्स करते हैं ना बड़े बड़े, आपका जो बड़ा पार्लियामेंट जो बन रहा है अभी दिल्ली के अंदर, वो प्रोजेक्ट भी जो टाटा वाले कर रहे हैं। सो टाटा प्रोजेक्ट्स, तो ये पूरे पार्ट ऑफ टाटा ग्रुप है। अगर आपके ग्रुप के अंदर जब आप खरीद ले रही तो इट इज कॉल्ड एज इंटरनल प्रोक्यूरमेंट। अगर आपके ग्रुप से बाहर जाके दूसरे के पास खरीद रही, दैट इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल प्रोक्यूरमेंट। So now you understand, I think. So we do have procurement for stock versus consumption, and the second thing is external versus internal procurement. So what will happen in procurement for stock is like, you're going to stock the material, you're not going to utilize them immediately, but in the later part. In the procurement of consumption, what will happen is like, you're going to consume the material immediately. And the next kind of procurement, we do have external versus internal procurement. In external procurement, what will happen is, you're going to buy the material from out of your group, like from the external vendors, बाहर के वेंडर से आप खरीदते हैं। इंटरनल प्रोक्योरमेंट में क्या होता है बोले तो भाई बाहर नहीं जाते आप, अंदर आपके पास ही खरीद लेते हैं। लाइक यू माइट बी हैविंग सो मेनी एग्जांपल्स, जैसा मैंने टाटा का बोला एग्जांपल। सो दिस माइट हैपन। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, अब देखिए एक्सटर्नल प्रोक्योरमेंट की जो बात कर रहे हैं हम लोग, एक्सटर्नल प्रोक्योरमेंट में बहुत सारी चीजें आते हैं। फिर क्या क्या आते हैं भाई एक्सटर्नल प्रोक्योरमेंट में? नो सी व्हाट इज एक्सटर्नल प्रोक्योरमेंट। External procurement is a process of procuring goods or services from external vendors. बाहर के वेंडर से आप नहीं खरीदते, मगर कि बाहर के वेंडर से आप खरीद रहे हैं। तो फिर एक्सटर्नल प्रोक्योरमेंट में भी फिर टाइप्स है। क्या क्या टाइप्स है देखो, देयर आर 3 बेसिक फॉर्म्स ऑफ एक्सटर्नल प्रोक्योरमेंट जनरली सपोर्टेड बाय द परचेजिंग कंपोनेंट ऑफ आईटी सिस्टम। आईटी वाले जो है 3 काइंड ऑफ प्रोक्योरमेंट सिस्टम्स को रिकमेंड करते हैं एक्सटर्नल प्रोक्योरमेंट में। क्या क्या हो सकता है भाई एक्सटर्नली? देखो बाहर जाके खरीदना है मेरे को, 3 तरह के जो है वे इसमें खरीद सकता हूँ मैं। द फर्स्ट वन वे इज वन टाइम ऑर्डर्स। वन टाइम बोले तो क्या है, वन टाइम खरीदना है सप्लायर के पास, मतलब आपका रिक्वायरमेंट जो है बार बार नहीं होता। समझो कि भाई आपकी कंपनी को जो है पेंटिंग कराना है, पूरी कंपनी को पेंटिंग जो है हर मंथ या हर हफ्ते को नहीं कराते आप लोग, आपके 10 साल में एक बार कराते हैं आपकी कंपनी को पेंटिंग कराते, समझिए। तो उन्हें वन टाइम वेंडर होता है आपका। सो वन टाइम वेंडर से क्या कर सकते हैं आप, सर्विस ले सकते हो, पेंटिंग की सर्विस ले सकते हैं आप। ओके, सो इट इज नॉट ए फ्रीक्वेंट वेंडर, मतलब बार बार आप उसके पास नहीं खरीदते रहते। सो वन टाइम वेंडर है। सो ये वन टाइप ऑफ एक्सटर्नल प्रोक्योरमेंट होता। और दूसरा क्या है, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स बोलते हैं इसको। तीसरा है लॉन्ग टर्म शेड्यूल अग्रीमेंट्स। 3 चीजें याद रखिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक है आपका वन टाइम ऑर्डर, आई विल हाईलाइट दिस। सेकंड है लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स, एंड द थर्ड वन इज लॉन्ग टर्म शेड्यूल अग्रीमेंट। सो नाउ one second. Okay, now so वन टाइम वेंडर तो आप समझ गए कि वन टाइम ऑर्डर है। वो वन टाइम ऑर्डर में क्या होता है बोले तो एक बार ही ऑर्डर प्लेस करते हैं आप वेंडर के पास से, उससे आपका रिलेशन बार बार नहीं रहता। याद रखिए वन टाइम वेंडर में या वन टाइम ऑर्डर में ये होता। द सेकंड इज लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स। व्हाट विल हैपन इन लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स? आप लोग सुने होंगे कॉन्ट्रैक्ट बोले तो क्या है। कॉन्ट्रैक्ट बोले तो क्या है, समझिए मेरे को जो है पर्टिकुलरली आई हैव डिसाइडेड दैट आई विल बाय सम पर्टिकुलर मटेरियल्स फ्रॉम सूटेबल वेंडर। मतलब समझिए कि मेरी कंपनी को कुछ मटेरियल्स होना, या जो समझिए कि मेरी एक कंपनी है, जैसा मैं आपको बोला कि लाइक आई हैव टेकन एग्जांपल, लाइक आई हैव ए कंपनी ऑफ पेपर ग्लासेस मैन्युफैक्चरिंग, सो आई नीड सम पेपर्स। हमेशा मेरे को न्यूज़पेपर्स की जरूरत रहती, तो मैं न्यूज़पेपर्स के लिए क्या करा बोले तो एक कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, कॉन्ट्रैक्ट बना लिया। किससे कॉन्ट्रैक्ट बना लिया मैं, ईनाडू जो न्यूज़पेपर आता है आपके पास, या साक्षी का जो न्यूज़पेपर आता, उन लोगों के पास जो पेपर जो बच जाते हैं डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद, वो बच गए से क्वांटिटी में खरीदता हूँ बोल के बात कर लिया मैं एक वेंडर से। साक्षी में जो सप्लायर है, वो सप्लायर से बात कर लिया, भाई देखो मेरे को जो है हर महीना इतने क्वांटिटी इतने टन ऑफ जो है मटेरियल की जरूरत है, सो वो मटेरियल जो है आप सप्लाई करो, वो मटेरियल सप्लाई करो बोल के जो है मैं उनको बोल दिया। ठीक है,
तो उनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट मेंटेन कर लिया हमें। व्हाट इज ए कॉन्ट्रैक्ट? कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट इज लाइक फॉर मटेरियल्स दैट आर बीइंग ऑर्डर्ड रेगुलरली एंड इन लार्ज क्वांटिटीज। आप जो है उसके पास डेली खरीदना चाह रहे हैं और आपके पास ज्यादा क्वांटिटीज में खरीदना चाह रहे हैं, वी कैन नेगोशिएट डील विद द वेंडर सेलर फॉर प्राइसिंग एंड कंडीशंस और रिकॉर्ड देम इन ए कॉन्ट्रैक्ट। इन ए कॉन्ट्रैक्ट यू आल्सो स्पेसिफाई द वैलिडिटी डेट। देखिए एक कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, हम लोग एक बंदे से, मैं जैसे बोला आपको, जहाँ पे आपको रेगुलरली खरीदना रहता, यू हैव टू बाई सम प्रोडक्ट्स फ्रॉम ए वेंडर, रेगुलरली आपको उसके पास से होना रहता, तो क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट मेंटेन करते हैं, बोलते हैं भाई देखो आप जो प्राइस से दे रहे हैं, एज प्राइस आपको देना पड़ता, मेरे को एज प्राइस आपको मेरे को देना पड़ता। सो दिस इज ए कॉन्ट्रैक्ट नाउ। सो एक कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, कुछ अग्रीमेंट्स होते हैं हमारे बीच और हमारे को सेलर के बीच में कि भाई मेरे को जो है आप ये क्वांटिटी ऑफ मटेरियल सप्लाई करेंगे मेरे को। ओके हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो है फलाना ड्यूरेशन तक रहता, 2 साल 3 साल। कॉन्ट्रैक्ट में 2 किस्म के कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं, एक वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट रहता, दूसरा क्वांटिटी कॉन्ट्रैक्ट रहता है। याद रखिए ये चीज, वन इज वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट, सेकंड इज क्वांटिटी कॉन्ट्रैक्ट। वैल्यू बोले तो क्या है, बोले तो भाई मेरे को तुम मटेरियल सप्लाई करो, पेपर हर महीना इतने क्वांटिटी होना मेरे को। वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता बोले तो एक वैल्यू फिक्स करता हूँ भाई, मेरे को ए वैल्यू तक का मटेरियल प्रोवाइड करो हमेशा। मतलब 1 लाख रुपए में फिक्स अमाउंट रख दिया कि भाई 1 लाख तक जितना आप सप्लाई कर सकते सप्लाई करो, ठीक है, वो बोलते हैं वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट। वैल्यू का डिस्कशन होता है। वैल्यू क्या होता है बोले तो भाई तुम इतने क्वांटिटीज भेजो, वैल्यू फिक्स हो जाता है, 1 लाख रुपए मैं देता हूँ, तो उन्हें क्या करता, वो क्वांटिटी को सप्लाई करता, वो वैल्यू फिक्स होता वहां पे। दूसरा होता क्वांटिटी कॉन्ट्रैक्ट होता। क्वांटिटी कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता, वैल्यू से मतलब नहीं है उसको, वैल्यू बढ़ सकता है कम हो सकता है, क्वांटिटी बोल देता उन्हें भाई देखो मेरे को 50 टन या 100 टन का क्वांटिटी मेरे को होना एवरी मंथ, बल्कि बोल देता। प्राइसेस क्या है, प्राइस फिक्स नहीं करता वहां पे, देखो लाख रुपए का सोना बोल के नहीं बोलता वहां पे, क्वांटिटी बोलता है भाई मेरे को कितना टन का क्वांटिटी होना। वो मंथ का प्राइस बढ़ भी सकता, कम भी हो सकता, कभी 1 महीने में बढ़ सकता, कभी 1 महीने में कम हो सकता, ठीक है। वो प्राइसेस मैं नेगोशिएट जैसा कर लिया, वैसा मैं कैसे नेगोशिएट कर लिया कॉन्ट्रैक्टर से, भाई देखो मैं पेपर जो है आपको 1 किलो 5 रुपए के हिसाब से देता हूँ। अगर समझो कि मार्केट में जरा पेपर का जो डिमांड अगर सप्लाई कम है तो मैं आपको जो है 6 रुपए कर सकता हूँ मैं, बट आई इन्फॉर्म यू, मैं इन्फॉर्म करता हूँ आपको बिल्डिंग करने से पहले बल्कि बोलता। तो दिस काइंड ऑफ अग्रीमेंट्स यू नो, एक काइंड ऑफ नेगोशिएशन आपको होते हैं उसके और के बीच में। तो ये होते हैं अपने कॉन्ट्रैक्ट्स, याद रखिए। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट में क्या करते हैं, आप एक वैलिडिटी डेट भी सेट करते हैं कि भाई हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो है 2 साल तक खत्म होता। देखिए आप लोग याद रखिए, आप लोग अगर किराए पे रहते हैं हैदराबाद में तो रेंटल अग्रीमेंट बल्कि भी रहता, कॉन्ट्रैक्ट वो अग्रीमेंट क्या होता बोले तो अग्रीमेंट ले लेते थे आप ओनर से कि भाई देखो 2 साल तक का अग्रीमेंट है। और आप देखेंगे एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट बल्कि रहता है। एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या रहता, एम्प्लॉयमेंट में जो है आप कंपनी जो हायर कर रही है आपको, वो कंपनी बोलती है कि 2 साल तक आप मेरे पास काम करना, नो मैटर व्हाट, क्या भी हो आपको 2 साल तक काम करना। अगर 2 साल के बीच में आप कॉन्ट्रैक्ट तोड़ेंगे तो क्या होता, आप फाइन भर के जाना पड़ता पैसे। तो इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कुछ कुछ कंडीशंस रहते। कॉन्ट्रैक्ट बोले तो क्या है, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, एक चीज याद रखिए, कॉन्ट्रैक्ट रहता है उसके अंदर। उसके बाद लॉन्ग टर्म शेड्यूलिंग अग्रीमेंट्स। शेड्यूलिंग अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट, ये भी दोनों का डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है आप लोगों को। अग्रीमेंट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट क्या है। अग्रीमेंट के अंदर क्या होता है, एक चीज याद रखिए, अग्रीमेंट इज ए डॉक्यूमेंट, यू नो, long term scheduling agreement and delivery schedules. If a material is ordered on an everyday basis and is to be delivered according to an exact time schedule, then you set up a scheduling agreement. Scheduling agreement कब सेटअप करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है बोले तो मैं उसको पर्टिकुलर टाइम नहीं बोलता हूँ भाई एवरी मंथ में इतना रिक्वायरमेंट होता है भाई लाके डाल दो बोल के बोलता हूँ, मंथ एंड तक हो गया। तो इसके अंदर शेड्यूल एग्रीमेंट में क्या होता है मालूम है, शेड्यूलिंग एग्रीमेंट में टाइम स्लॉट्स देते हैं तुम उनको, भाई ये हर महीना मेरे को 50 टन होना, मगर हर महीना 10 तारीख तक मेरे को 20 टन कंपलसरी होना, 20 तारीख तक रिमेनिंग 20 टन होना, 30 तारीख तक रिमेनिंग 10 टन लाके दे दो मेरे को। तो वहां पे क्या कर रहे हैं आप, उसको डिफाइन कर रहे हैं भाई देखो तुम 50 टन बोले तो 30 तारीख तक लाके दिए तो ले जमता भाई हमारे को 10 तारीख तक क्या करना, 20 टन लाओ, 20 तारीख तक क्या करो और रिमेनिंग 20 टन लेके आओ, और जो 30 तारीख तक क्या कर सकते, जो बचा कुछ 10 टन है वो लाके दे सकते हैं आप। तो दिस इज कॉल्ड एज शेड्यूलिंग अग्रीमेंट। इन शेड्यूलिंग अग्रीमेंट व्हाट विल हैपन इज लाइक it will be delivered to you according to the exact time schedule। टाइम शेड्यूल देते हैं उसको, भाई ये टाइम पे तो आके दे देना मेरे को, ये आपका शेड्यूल है, मेरे को बराबर वो टाइम पे मेरे को इतना क्वांटिटी होना था, मेरा प्रोडक्शन रुक जाता। ये है आपका शेड्यूलिंग एग्रीमेंट। कॉन्ट्रैक्ट और शेड्यूलिंग एग्रीमेंट दो भी सेम ही है, याद रखिए, अग्रीमेंट्स और कॉन्ट्रैक्ट सेम ही है। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या होता है बोले तो उसको टाइम स्पेसिफिक नहीं करते अपन, मगर ड्यूरेशन स्पेसिफिक करते हैं हम लोग। 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है हमारा, 3 साल का है, क्या है डिफाइन करते हैं उसको, उसके अंदर वैल्यू को डिफाइन करते हैं, तो क्वांटिटी को डिफाइन करते हैं, मगर उसके पास क्या टाइम पार्टी का वो टाइम स्लॉट्स नहीं देते अपन, ये टाइम तक इतना होना, ये टाइम तक इतना होना नहीं बोलते उसको। उसमें क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, देखो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो है
कब भेजता उन्हें क्वांटिटी बोले तो तुम्हारे पास से एक रिलीज ऑर्डर जाना पड़ता, परचेज ऑर्डर, जब भी जो है उन्हें क्या करता, आपको क्वांटिटी भेजता। आपके जहन में सवाल आया होगा, भाई आप क्या बोल रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता, 50 टन की क्वांटिटी मंगाए, कैसा भेजता उन्हें, कितना भेजना कैसा मालूम होता उसको बोले तो। कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट एक अग्रीमेंट बनने के बाद क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट में आपको जितना रिक्वायरमेंट होना है, जब भी होना है, क्या करना आपको, समझो कि मेरे को ये महीना 20 तारीख तक मेरे को एक 50 टन में से एक 40 टन होना है, तो मेरे को एक रिलीज ऑर्डर बनाना पड़ता। रिलीज ऑर्डर इज नथिंग बट ये परचेज ऑर्डर। परचेज ऑर्डर को हम कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या बोलते हैं, उसको रिलीज ऑर्डर बोलते हैं। मतलब हम लोग वो 50 क्वांटिटी में से हमको 40 दे बोल के रिलीज करने बोले, हमें ऑर्डर को रिलीज कर रहे हैं, वो इस वेंडर को जाता है, सीधा वो वेंडर को जाता है, अरे भाई देख हमारे को 40 क्वांटिटी 40 टन ऑफ स्टॉक आई नीडेड ऑन दिस डेट बोल के उसको रिलीज ऑर्डर जाता। वो रिलीज ऑर्डर को रेफरेंस लेके जो क्वांटिटी बेचता, याद रखिए ये चीज। शेड्यूलिंग एग्रीमेंट में क्या होता, वहां पे एक पीओ या रिलीज ऑर्डर क्रिएट नहीं होता। शेड्यूलिंग एग्रीमेंट में क्या होता बोले तो, जो डेट्स थे आप स्लॉट्स प्रोवाइड कर रहे हो उसको पहले बोल दिया उसको शेड्यूलिंग एग्रीमेंट में, भाई देखो फलाना डेट पे फलाना क्वांटिटी मेरे पास घर को आ जाना, सीधा सीधा मेरे आप उसको फलाना डेट पे फलाना अमाउंट क्वांटिटी आ जाना, खत्म। इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं होते। अगर आपको शेड्यूलिंग एग्रीमेंट का चेंजेस होना तो बाद में फिर वो एग्रीमेंट में एडिट कर सकते हैं, एग्रीमेंट चेंज करके उसको इंटीमेट करना कि भाई देखो हमारा चेंजेस कर दिया हमें बोल के। तो शेड्यूलिंग एग्रीमेंट को इंटरव्यूअर पूछता आपको व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए कॉन्ट्रैक्ट एंड एन एग्रीमेंट, बोलता पहले चीज है। तो आपको कॉन्ट्रैक्ट बोले तो क्या है, अग्रीमेंट बोले तो क्या है, उसको डिफरेंस समझा दिया। यू हैव एक्सप्लेन्ड हिम लाइक व्हाट इज एन कॉन्ट्रैक्ट एंड व्हाट इज एन एग्रीमेंट। तो देन उसको पूछता है उन्हें, सो डिफरेंस क्या है भाई, कॉन्ट्रैक्ट से एग्रीमेंट से डिफरेंट क्या है, तो डिफाइन तो कर रहा है मेरे को, डिफरेंस क्या है, डिफरेंस फाइंड करो। सो उसको बोल रहा है कि सर इन ए कॉन्ट्रैक्ट व्हाट विल हैपन इज लाइक, सो इफ यू हैव सम मटेरियल्स whom you will order every day, so what you will do is if you know a supplier and if you have finalized a supplier, so what you will do, you will have a contract with him, you will sign a contract with him by saying that you need to supply this quantity of material to my company. So whenever I need a material, what I will do, I will release you a order. Based on that order, you need to supply me a material. This will happen in a contract, sir. But in an agreement, what will happen is, in an agreement, we will be telling him, we will be providing him schedule lines, which says like, in this for this schedule, you have to provide me this quantity. ये तारीख के दिन आपको ये प्रोवाइड करना, ये तारीख के दिन ये प्रोवाइड करना, ये तारीख के दिन ये प्रोवाइड करना. So this is you are gonna telling in scheduling agreement. ये चीज याद रखिए. So this is a major difference between ये contract and schedule agreement. Okay. So the next one. So next. I don't know why this is not working. Okay. So the next one is your internal procurement. मैं जैसा आपको बोला कि अभी तक जो डिस्कशन हमारा हो रहा था, so the discussion is on your external procurement. ठीक है. And then what is this internal procurement that we are going to know? I told you already कि बड़े बड़े कंपनीज के अंदर, बड़े बड़े ग्रुप्स के अंदर क्या होता कि उनके पास ही सब मटेरियल मिलता है. जैसे टाटा ग्रुप, मैंने बोला कि टाटा ग्रुप के पास कुछ अगर सॉफ्टवेयर की जरूरत है तो TCS गोना प्रोवाइड दिस. Okay, so large corporate organizations may own multiple separate businesses or companies. So internal procurement is a process of getting material and services from among identical companies. So each of these companies maintains a complete bookkeeping system with separate balance, profit loss statements, so that when trade occurs between them, it will be recorded. याद रखिए एक चीज क्या होता है इसके अंदर, मैं जैसे बोला आप लोगों को, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होता है, उसके पास मल्टीपल जो है उसके पास कंपनीज रहती है. जैसा मैं आपको बोला, टाटा ग्रुप के अंदर टाटा प्रोजेक्ट्स है, टाटा TCS है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है जो सॉफ्टवेयर कंपनी, सॉफ्टवेयर का हिस्सा है टाटा का. ओके, सो टाटा स्टील है जो स्टील मटेरियल्स लाइक स्टील के रॉड्स जो है आप कंस्ट्रक्शन के लिए स्टील के रॉड्स है, या स्टील के जितने भी प्रोडक्ट्स है वो प्रोवाइड करता. आयरन के प्रोडक्ट्स जो प्रोवाइड करता टाटा स्टील आपके पास है. सो डिफरेंट टाटा प्रोडक्ट्स यार, टाटा साल्ट है, टाटा साल्ट जो आप घरों के अंदर यूज करते हैं. तो टाटा डिफरेंट डिपार्टमेंट, टाटा कार्स है जो कार्स की प्रोडक्शन करता. सो टाटा के अंदर डिफरेंट ग्रुप्स है जो उसके रिक्वायरमेंट उन्हें फिल कर सकता है. समझो कि TCS के अंदर मेरे को कुछ कार्स होना है, कुछ कार्स खरीदना है जो मैं CEO को या मैनेजर्स को प्रोवाइड करना है कार्स में कंपनी की तरफ से, तो उन्हें क्या करता, जाके मारुति की कार खरीद के नहीं आता. सो ही विल डू इंटरनल प्रोक्योरमेंट. व्हाट ही विल डू, उन्हें टाटा ग्रुप से खरीदता, मगर ही विल बी हैविंग, उन्हें क्या करता, खाली ऐसी नहीं खरीदते ना भाई, उसके बाद भी रिकॉर्ड होना पड़ता कि भाई कौन सा डिपार्टमेंट को क्या क्या इशू कर रहे हैं हम लोग. सो कौन से अपने टाटा ग्रुप को शेयर कर रहे हैं, मगर ही हैज टू मेंटेन ए बुक कीपिंग सिस्टम. ही शुड हैव ए बुक कीपिंग सिस्टम के कितना हम लोग ये कर रहे हैं, और उसमें बैलेंस शीट मेंटेन करना पड़ता है उसको, और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स भी मेंटेन करना पड़ता है. अगर कोई सेल्स के फील्ड के है
तो उन लोगों को मालूम है बैलेंस शीट क्या होती है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स क्या होते हैं. सो दिस दे आर गोना मेंटेन इट. ओके, सो एट दिस स्टेज अपने को डीप में समझने की जरूरत नहीं है बहुत सारे चीजों को. तो ये मैं जो समझ रहा हूँ समझा रहा हूँ आपको, जितना हमारे को इन्फॉर्मेशन चाहिए आगे बढ़ने के लिए वही इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ. व्हेन वी गो टू इंडिविजुअल डिपार्टमेंट, एक एक डिपार्टमेंट में जाके आप काम करेंगे डॉक्यूमेंट्स पे, जब मैं आपको समझाऊंगा कॉन्फ़िगरेशन जब हम करेंगे, आई एम गोना टेल यू ये क्या क्या चीज़ें हैं, एक एक चीज़ क्या है, ये प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, ये बैलेंस शीट क्या होते हैं, ये सब चीज़, ये बुकिंग सिस्टम क्या होता है, ये डॉक्यूमेंट है, ये मीरो क्या है भाई, ये इनवॉइस क्या है, व्हाट इज दिस पीओ, ये पीओ कैसा बनाते हैं, कितने पीओ आ रहे थे, हमारे पास वो सिस्टम नहीं है ना, हम लोग ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, सब चीज़ें जो है वहाँ पे क्लियर होता है आपको. सो दिस इज योर इंटरनल प्रोक्योरमेंट. अब हम लोग आए स्पेशल प्रोक्योरमेंट में. सो व्हाट इज दिस स्पेशल प्रोक्योरमेंट? स्पेशल स्टॉक्स. अब तक जो है हम लोग कौन से प्रोक्योरमेंट टॉपिक के अंदर है? वी वर इन ए बेसिक प्रोक्योरमेंट इन ए प्रोसेस. एक सवाल हमारे जो है चैट बॉक्स के अंदर है कि आर वी नॉट गोना यूज पीओस फॉर ए शेड्यूल अग्रीमेंट. हाँ, मैं जैसा बोला, शेड्यूलिंग अग्रीमेंट एक डॉक्यूमेंट है, समझो कि एक पीओ है जिसके अंदर आपको डिफाइन करके रहता है लाइन शेड्यूल लाइंस में कि ये टाइम पे जो है आपको डिलीवर करना है. आपको कोई भी पीओ वहाँ पे क्रिएट नहीं होता, बट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पीओ जनरेट होता है. ये चीज याद रखिए आप लोग. ओके, राइट. So still I'm suffering with my throat infection, so yeah. Special stocks are stocks that are managed differently, as these stocks did not belong to company and these are being kept at some particular location. Special procurement and special stocks types are divided into subsequent areas. देखिए एक चीज क्या है याद रखिए, स्पेशल यहाँ पे बेसिक प्रोक्योरमेंट बोल तो क्या बोला मैं आपको, आपके पास जो रिक्वायरमेंट है वो क्या करते हैं, आप वो रिक्वायरमेंट को बाहर जाके कुछ वेंडर्स को पकड़ लेते हैं और वेंडर्स को बोलते हैं अरे भाई तुम एक मटेरियल सप्लाई कर दे बोल के. ये सीधी सीधी प्रोक्योरमेंट है. इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिक प्रोक्योरमेंट बोलते हैं. स्पेशल प्रोक्योरमेंट क्या है? एक ऐसा स्पेशल प्रोक्योरमेंट है जिसके अंदर क्या होता है बोले तो स्टॉक्स को जो है डिफरेंट तरीके से हम लोग मैनेज करते हैं. कंपनी के नहीं होता वो स्टॉक्स. मतलब देखिए इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का एग्जांपल मैंने लिया. इलेक्ट्रिसिटी, सप्लाइंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड एज स्पेशल स्टॉक है. उसको पाइपलाइन हैंडलिंग बोलते हैं, उसको पाइपलाइन हैंडलिंग बोलते हैं. ये पाइपलाइन हैंडलिंग बोलते तो क्या होता है बोले तो भाई इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोवाइड करते रहता है इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, वो इलेक्ट्रिसिटी आपकी नहीं होता. एक चीज याद रखिए, आपके मतलब आपके जो ऑफिस के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास होते रहता, शुरू कहां से होता, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट से लेके आप तक इलेक्ट्रिसिटी पास होते रहता, इलेक्ट्रिक सबस्टेशन से लेके आपके पास पास होते रहता. क्या ये इलेक्ट्रिसिटी आपकी है? नहीं है. इलेक्ट्रिसिटी किसकी है? इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट वाले की है. तो ये कंटिन्यूस सप्लाई होते रहता, ये आपके प्रेमिसेस में रहता, मगर ये आपका न होता करंट. आप इस्तेमाल कर सकते, जितना इस्तेमाल करे उतना आपको पे करना रहता. और एक रहता डिफरेंट टाइप्स रहते इसके अंदर. स्पेशल स्टॉक मतलब ये है जो स्टॉक्स हम लोग जो है डिफरेंटली मैनेज करते. कैसा मैनेज करते? इसमें कितने के मतलब ये कंपनी के नहीं होता, वेंडर के रहते, मगर तुम्हारे प्रेमिसेस में रहते. याद रखिए, मतलब इलेक्ट्रिसिटी है आपके प्रेमिसेस में रहती, आपके ऑफिस के अंदर रहती, मगर उसके ऊपर वो इलेक्ट्रिसिटी मेरा बोल के आप नहीं बोल सकते, वो है टीएसएस पीडीएसएल वाले का, मारता उन्हें मेरा बोल के बोले तो फाइन डालना तुम्हारे ऊपर में. फिर वाटर है, वाटर सप्लाई कर रहे. कौन सप्लाई कर रहे? हैदराबाद की जो बीएचएमसी है उन्हें वाटर सप्लाई कर रही. सो कौन बिल प्रोवाइड करेगा? जेएचएमसी वाला प्रोवाइड करता वाटर का बिल. यू कैन से लाइक ये वाटर मेरा है भाई, मैं खरीद लिया पूरा वाटर मेरे वो जो आ रहा. आप जो अगर एक टैंकर खरीद लेके आप लाके रख लिए तो वाटर वो हिस्सा पूरा आपका बोल सकते. जो वाटर कंटिन्यूसली सप्लाई हो रहा, द थिंग विच इज कंटिन्यूस सप्लाई, यू कैन से लाइक क्वांटिटी पूरा मेरा है भाई, नहीं, अनलेस अंटिल यू पे फॉर दैट क्वांटिटी. सो स्पेशल स्टॉक्स आर मैनेज्ड डिफरेंटली. उसको हम बेसिक प्रोक्योरमेंट नहीं बोलेंगे, इसको स्पेशल प्रोक्योरमेंट बोलेंगे. तो इसके अंदर क्या क्या टाइप्स है वी विल सी देम. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्पेशल प्रोक्योरमेंट. कंसाइनमेंट स्टॉक्स, ये कितने टाइप्स ऑफ स्पेशल प्रोक्योरमेंट्स है? 5 से 6 टाइप ऑफ स्पेशल प्रोक्योरमेंट्स है. ये क्या होता है इसके अंदर एक एक टाइप में हम देखेंगे. कंसाइनमेंट स्टॉक्स. कंसाइनमेंट स्टॉक में क्या होता है, एक सीधा सीधा देखिए, देन आई विल एक्सप्लेन इन इंग्लिश. कंसाइनमेंट स्टॉक में सीधा सीधा ये चीज होती है कि आपको जो भी समझो कि आपको, मैं जैसा बोला, आपको करंट की जरूरत है, सप्लाइंग इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट वाले को बोले कि भाई इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करो, कितनी होना सप्लाई करंट बोल के नहीं पूछता उन्हें आपको, कितने करंट भेजो मैं तुम्हारा कितना भेजो बोल के नहीं बोलता उन्हें. क्वांटिटी नहीं मालूम होता भाई, कितना भी यूज कर सकता हूँ मेरी मर्जी, वो महीने के एंड में तू बिल डाल मेरे को, ठीक है ना. इसको बोलते हैं कंसाइनमेंट स्टॉक. मतलब आपके प्रेमिसेस में स्टॉक रहता, उस पर आपकी हक नहीं रहती, आपको जितना होना होता यूज कर लेना, उसका बिल उन्हें बाद में डालता. बेसिक प्रोक्योरमेंट में क्या हो रहा था, आपको जो भी होना है आप क्या करते हैं, पैसे वो खरीद लेके पैसे देके आ रहे थे. इसमें क्या होता बोले तो उन्हें आप यूज करते रहते, उसको जितना होना होता आखिरी में बिल डालता उन्हें. जैसा मोबाइल नेटवर्क है, पोस्टपेड का नेटवर्क रहता, पोस्टपेड नेटवर्क में क्या होता, पहले पैसे नहीं लेता उन्हें. प्रीपेड में क्या होता, देखो प्रीपेड क्या है, प्रीपेड एक डिफरेंट बेसिक प्रोक्योरमेंट है. पोस्टपेड में क्या होता,
पोस्टपेड में आप पूरा नेटवर्क यूज कर लेते, लास्ट में बड़ी बिल डालता हूँ 1000 रुपए हुई भाई तुम्हारे मंथ की बिल, तुम इतना नेट यूज करे, इतने कॉल्स यूज करे, इतने जो ISD कॉल्स करे, बोल के आपको लास्ट में बिल डालता। सो इट इज कॉल्ड एज योर कंसाइनमेंट स्टॉक्स। आपके प्रेमिसेस में रहते मगर उसका हक आपका कंप्लीटली नहीं रहता। आप जितना भी स्टॉक यूज करना उसको इन्फॉर्म करते हैं और बोलते कि भाई हम ना इतना मटेरियल इतना जो है इलेक्ट्रिसिटी हम लोग को रिक्वायरमेंट है, हम लोग यूटिलाइज कर रहे हैं, इतना पानी हम लोग को होना, जैसे वाले को बोलते हैं भाई इतने क्यूसेक का वाटर मेरे को होना, इतना वाटर जो है रिलीज करो प्लीज, हम लोग यूज करते हैं। उसके बाद उन्हें यूज करने के बाद बिल डालता month end में। So like this, so material that is available at your store premises, however it still belongs to the vendor। याद रखिए आपके स्टोर premises में रहता, आपको जितना होना वो तो यूज कर देते हैं उसको, समझिए भाई। देखो लाइक मेरी कंस्ट्रक्शन कंपनी है यार, नहीं तो आई एम डूइंग सम कंस्ट्रक्शन, तो मेरे को जो है सैंड की जरूरत है, कितने की मेट्रिक टन ऑफ सैंड की होना, बड़ा बड़ा अपार्टमेंट जो है मैं बना रहा हूँ। तो मैं क्या करता हूँ भाई, खरीब में जो रेती सप्लाई करने वाला रहता है उसके पास जाके बोलता हूँ सैंड वाले को, सैंड सप्लायर को, भाई देख मैं बड़ा अपार्टमेंट कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ, ठीक है, तो क्या कर एक 100 टन ऑफ रेती ला के डाल दे, मेरे को उतनी जरूरत है कि नहीं मालूम, मे भी 90 टन की जरूरत पड़ सकती है, मे भी 80, मे भी ज्यादा भी जरूरत पड़ सकती। मैं जो है जितना यूज करना यूज करता हूँ, रिमेनिंग तो बाद में लेके जा, बचा जितना पैसे डालता बाद डाल के लेके जा, एडवांस तेरे को मैं इतना पेमेंट कर दूँ, या मेरे पास ब्लैंक चेक रखता हूँ तेरे पास, या कुछ भी करता हूँ मैं ऐसा, ये श्योरिटी रखता हूँ बोल के। तो दैट विल हैपन। सो हम लोग क्या करते हैं, उसको बोलते हैं कि तेरा स्टॉक ला के मेरे पास डाल दे, सो मेरे को जब भी यूज करना है मैं यूज करता हूँ, रिमेनिंग तो स्टॉक तो लेके जा सकता बचने के बाद। दिस इज कॉल्ड योर कंसाइनमेंट स्टॉक। आपके प्रेमिसेस में रहता, मगर आप नहीं बोल सकते पूरा स्टॉक मेरा मैं खरीद लिया बोल के, नहीं, आप उसको रिक्वेस्ट करें कि लाके डालो, मैं जितना होना मैं यूज कर लेता हूँ इसमें से, ठीक है ना। ये इट इज कॉल्ड एज कंसाइनमेंट स्टॉक। सो नेक्स्ट इज थर्ड पार्टी प्रोसेसिंग। थर्ड पार्टी प्रोसेसिंग में क्या होता है, व्हाट विल हैपन इन थर्ड पार्टी प्रोसेसिंग? इन कंसाइनमेंट स्टॉक व्हाट हैपेंड इज, whenever you require a material, what you're gonna say, you're gonna say like your vendor, I need this quantity of material, but I'm not sure how much I'm gonna use it. So what you do is like please supply this kind of this much of materials. So whatever the quantity of material I'll use, please bill on that material. So what I'll do is like consignment में क्या होता है बोले तो, जितना स्टॉक में यूटिलाइज करा उसको मंथ एंड में उन्हें बिल भेजता, उसको बोलते हैं कंसाइनमेंट सेटलमेंट बोलते। आई विल से इट एज ए कंसाइनमेंट सेटलमेंट। सेटलमेंट्स क्या बोलते हैं, वो जैसा हम अग्री करें, मतलब करंट बिल है हर मंथ को आती है आपको, 2 महीने में एक बार, 2 बोलता नहीं सुनता हूँ मैं, महीने को एक बार देता हूँ, मेरे को महीने में एक बार बोलता हूँ। वाटर बिल है मंथ में एक बार आती, तो ऐसा आप जैसे अग्री कर लिए वो कॉन्ट्रैक्टर से, वो हिसाब से जो है उन्हें आपको बेचता। सो दैट इज कॉल्ड एज योर कंसाइनमेंट स्टॉक्स। थर्ड पार्टी प्रोसेसिंग रहता, थर्ड पार्टी प्रोसेसिंग जो मिसाल आपको मैं ले रहा हूँ हमेशा फ्लिपकार्ट की, अमेजन की, वो थर्ड पार्टी प्रोसेसिंग है। फ्लिपकार्ट जो फोन आप ऑर्डर कर रहे हैं वो कभी भी फ्लिपकार्ट का नहीं होता। फ्लिपकार्ट क्या करता है, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता जहां पे बहुत सारे सेलर आगे जम के जो है उनके आइटम्स को बेच लेते, ठीक है ना। सो देखो थर्ड पार्टी प्रोसेसिंग में क्या होता है, देखिए कि कोई आके मेरे को पूछता भाई देखो मेरे को जो है इतने क्वांटिटी की मटेरियल चाहिए आपके पास से, इतने जो है आपके पास से मेरे को पेपर ग्लास चाहिए। मैं क्या बोलता हूँ उसको, अच्छी बात थी कि भाई तेरे को प्रोवाइड करता हूँ जा बोल के बोलता हूँ उसको। मैं क्या करता हूँ, एक सेल्स ऑर्डर बनाता हूँ कि मेरे को कस्टमर को इतने होना बोल के, वो किसको बेचता हूँ मैं, जो सेलर बना सकता मैं, मतलब मैं जिससे बात करके रख लिया उसको बोलता हूँ मैं जाके भाई देख ये इतने ग्लास मेरे को होना, फलाना कस्टमर को भेज दे दो, ठीक है, मगर बिलिंग तो कस्टमर को नको कर, मेरे कर। तो कस्टमर को बिल कौन करते, मैं करता हूँ कस्टमर को बिल, क्योंकि मेरा कमीशन देख ले करता हूँ मैं, फ्लिपकार्ट वाला वेज करता। व्हाट इज गोना डू इज लाइक ही विल हैव हिज ओन कमीशन। समटाइम्स क्या होता है बोले तो, कमीशन जो है मैं कभी भी कस्टमर, कभी कभी क्या होता है बिजनेस सिनेरियो में, कमीशन जो है कभी कभी मैं कस्टमर के पास एक कमीशन लेता हूँ, सेलर के पास क्या भी नहीं लेता हूँ मैं हमेशा। कभी कभी मैं क्या होता है, मैं सेलर के पास कमीशन लेता हूँ, कस्टमर के पास क्या भी नहीं लेता हूँ। जिस काइंड ऑफ सिनेरियोस में यहाँ पे थर्ड पार्टी प्रोसेस में क्या होता है, आपका जो ऑर्डर है वो ऑर्डर जो है दूसरा थर्ड पर्सन प्रोसेस करता, थर्ड पर्सन। याद रखिए, फ्लिपकार्ट को मैं रिक्वेस्ट डाला भाई मेरे को आईफोन होना बोल के, आईफोन फ्लिपकार्ट वाला नहीं बेचता, फ्लिपकार्ट के वेयरहाउस में रहता, मगर आईफोन उसकी नहीं होता, वो सेलर के पर्टिकुलर सेलर रहता, वो सेलर का वेयरहाउस से उन्हें बेचता। याद रखिए ये चीज। दिस इज कॉल्ड एज थर्ड पार्टी प्रोसेसिंग। ओके, सो नाउ आप एक चीज, बहुत सारी चीजें याद रखे होंगे कि क्या होता है, कभी कभी आप कभी जो है कहीं माल में जाके जो है कपड़े खरीदे आप, इफ यू बॉट सम मटेरियल, क्लॉथ मटेरियल आप खरीदेंगे, तो उन्हें क्या बोलता है भाई आप अगर मटेरियल मेरे पास खरीदेंगे आई कैन प्रोवाइड यू फ्री स्टिचिंग, ओके, और नहीं तो मेरे पास डिस्काउंटेड टेलर है उन्हें स्टिचिंग प्रोवाइड करता है आपको, ठीक है। तो मेरा रिक्वायरमेंट क्या था, मेरे को जो है मैं बड़ा ऑर्डर प्लेस करा एक दुकान को कि मेरे को स्कूल यूनिफॉर्म्स होना, मेरे ऑफिस को जो मेरा ऑफिस के यूनिफॉर्म होना, मेरे स्टाफ जो है इतनी स्टाफ है, ये स्टाफ को मेरे को जो है इतने यूनिफॉर्म होना, प्लीज प्रोवाइड करो। मगर वो जो क्लास स्टोर वाला है
उन्हें क्या करता, उसके पास क्लॉथ्स है खाली मगर वो स्टिच्ड क्लॉथ्स नहीं रहते उसके पास। उन्हें क्या करता है, टाइलर को मटेरियल प्रोवाइड करता, रॉ मटेरियल प्रोवाइड करके टाइलर को बोलता, अरे भाई देख कस्टमर को जो है क्या करे, इतना क्वालिटी होना करते इसको सप्लाई कर बोल के बोल देता। तो दिस काइंड ऑफ, अगर मेरे पास वो चीज नहीं है तो मैं थर्ड पार्टी को बोल देता हूँ, सप्लाई करता। दिस इज कॉल्ड एज थर्ड पार्टी प्रोसेसिंग। इन थर्ड पार्टी प्रोसेसिंग व्हाट विल हैपन, ए कंपनी पासेस ऑन ए सेल्स ऑर्डर टू एसोसिएट एक्सटर्नल वेंडर, मैं दूसरे को पास करता हूँ तो भेज रहे बोल के, हु सेंड्स द गुड्स डायरेक्टली टू द कस्टमर, कस्टमर क्या करता है गुड्स भेज देता है डायरेक्टली। द सेल्स ऑर्डर इज नॉट प्रोसेस्ड बाय योर कंपनी, कंपनी क्या करती है वो ऑर्डर को प्रोसेस नहीं करती। तो क्या करता वो, कभी कभी वो सेलर क्या करता है इनवॉइस प्रोसेस करता है, उसको सेलर का कस्टमर को डाल देता कि भाई मैं जो आइटम भेजा वो आइटम के पैसे इतने हैं, कितने, वो आइटम अगर 500 रुपए का है तो 500 रुपए कस्टमर से देता उन्हें, कौन, वो सेलर लेता। वो सेलर क्या करता है कमीशन देना पड़ता कि इसको मेरे को, देखिए जोमेटो का एग्जांपल लीजिए, बहुत बड़ा एग्जांपल जोमेटो का है। देखिए जोमेटो क्या है बिजनेस का, जोमेटो का प्रोसेस मतलब जोमेटो को रेस्टोरेंट को टाइप कर लिया, टाइप कर ले क्या करता उन्हें, आपको बिरयानी होना है, शागोस की बिरयानी ऑर्डर करना है, तो क्या करते हैं आप, शागोस की बिरयानी होना बोल के जोमेटो का ऐप ओपन करते, शागोस के ऑर्डर पे बिरयानी लिखी हुई रहती है, बिरयानी 220 रुपए, क्लिक करते हैं उसको ऑर्डर करते। ऑर्डर करने के बाद क्या होता, जोमेटो वाला नहीं देता कभी भी लाके, जोमेटो का एम्प्लॉय रहता, उन्हें क्या करता जाके वो सेलर के पास जाता, सेलर रेस्टोरेंट इज प्रोसेसिंग योर ऑर्डर बोल के बोलता, रेस्टोरेंट वाला कौन है, तुम्हारा सेलर ही है जो देने वाला है, उन्हें प्रोसेस करता। सो दैट सेलर इज गोना प्रोसेस योर ऑर्डर। सो हु इज दैट सेलर, वो रेस्टोरेंट वाला आपका ऑर्डर भेजता, शागोज वाला क्या करता आपको, वो बिरयानी पार्सल भेजता। ओके, वो बिरयानी पार्सल भेजने के बाद क्या है, उन्हें जो उसका प्राइस था वो प्राइस यहाँ पर डिस्प्ले करा तुम्हारा 220 रुपीज। वो 220 रुपीज क्या होता है, 220 रुपीज अग्रेड प्राइस है शागोज वाले से, मगर 220 रुपीज में 20 रुपीज कमीशन किसका है, वो जोमेटो वाले का है। डायरेक्टली शागोज में जाके खाना खाएंगे अब 200 रुपए से रहता, 220 रुपए उन्हें जोमेटो में दिखाता, उन्हें प्राइस क्या कोई दिखाता, जोमेटो 220 रुपए, तो 20 रुपए कमीशन जोमेटो वाले की है। और जोमेटो वाले फिर प्रोसेसिंग फी बोल के डालते, वो अलग से फिर तुम्हारे पास से लूटते रहते अलग से। तो दिस माइट हैपन। सो दिस इज अ काइंड ऑफ सिनेरियो। थर्ड पार्टी प्रोसेस में क्या होता है बोले तो, कभी भी जो है जोमेटो को ऑर्डर आते, जोमेटो वाला घर में से बना के नहीं ला के देता, उन्हें शागोज वाले को बोलता है भाई देखो तेरे बिरयानी होना कहते बंदे को सप्लाई करो बोल के। तो दिस इज व्हाट इट कॉल्ड एज थर्ड पार्टी प्रोसेसिंग। पाइपलाइन हैंडलिंग, ये बेस्ट एग्जांपल मैं बोला आपको, इलेक्ट्रिसिटी जैसा वाटर सप्लाई होना, इलेक्ट्रिसिटी होना, या तुम्हारी ऐसी कंपनी जहाँ पे आपको पेट्रोल की हमेशा जरूरत रहती, तो पेट्रोल लाइन डाल लेते, सीधा पेट्रोल की लाइन डाल लेते। ठीक है, आईओसीएल की अगर प्लांट है आपके पास खरीद में, तो आईओसीएल के प्लांट वाले को बोलते हैं भाई एक पाइपलाइन डाल दे हम सीधा सीधा, तो पेट्रोल वहां से जितना रिलीज करता है आपको, अपना जितना यहाँ पे कंज्यूम करे उसके अंदर जो मीटर में रीडिंग आता है वो रीडिंग के हिसाब से आप बिल करते रहते हो मंथली वंस। आप देखेंगे कि मिशन भगीरथ के जो प्रोजेक्ट में हर घर पे जो एक मीटर फिट करके रखे लो पानी का भी, वो पानी का मीटर इसलिए फिट करे कि आपको बिल डालने वाले आगे आगे, कि पहले क्या होता था भाई कि जितना पानी रिलीज करता था उन्हें 100 मीटर करते जाते थे, आप कौन कितना यूज करा किसको मालूम भी नहीं होता था। अब उन्हें मीटर फिक्स करा एंड पे आके घर पे, आपके घर पे मीटर फिक्स करा, वो मीटर में क्या होता बोलो तो आप कितना पानी यूटिलाइज कर रहे हैं मीटर में बिल आता, मंथ होते क्या होता भाई इन्हें देखो 100 लीटर ऑफ वाटर यूज करा, तो 100 लीटर की बिल आपको म्यूनसिपालिटी वाली डालने वाली है। सो दिस इज कॉल्ड एज पाइपलाइन हैंडलिंग। पाइपलाइन हैंडलिंग में क्या होता बोले तो आपको हमेशा आपके पास वो आपके आपके प्रेमिसेस में रहता, आपके प्रेमिसेस में रहता, जितना आप यूज करें उतनी की बिल उन्हें डालता। मतलब करंट देखो, करंट हमेशा अवेलेबल रहता आपके घर में, ये करंट मेरा बोल के नहीं बोल सकते आप करंट इस्तेमाल कर सकते हैं, आप कितना बोले उतना, ये मेरा बोल के नहीं बोल सकते, करंट है करंट डिपार्टमेंट वाले का, तो उसको वो जितना यूज करा उतनी बिल आती। ठीक है, करंट वाला नहीं बोलता कि भाई देखो तुम एक ही लाइट लगाना, देखो नहीं तो नहीं, तुम लोग नहीं बोलता उन्हें तो कितने लाइट में लगा लो भाई, मैं आखिर में आके बिल डालता हूँ तुम्हारे को। So this is called as pipeline handling. Okay. So next is returnable transport stock. ये क्या है, ये भी एक स्पेशल स्टॉक है। ये returnable transport stock क्या है, what is this returnable transport stock? See what will happen is like if your company needs some gas, अगर आपकी कंपनी को गैस की जरूरत है, गैस किस में आ सकता है, उन्हें हाथ में लाके नहीं दे सकता या ट्रक में लाके नहीं दे सकता आपको, गैस कैन बी सप्लाइड वाया सिलेंडर्स, सिलेंडर से लाके दे सकता। सिलेंडर क्या हो सकता, सिलेंडर आपका नहीं होता, सिलेंडर लाके रख देता, खत्म होने के बाद सिलेंडर देना पड़ता उसको वापस आपको। 100 सिलेंडर्स उन्हें भेजा, ऑक्सीजन सिलेंडर्स अगर जरूरत है आपकी कंपनी को, ऑक्सीजन सिलेंडर्स भेजता उन्हें। अगर जो गैस सिलेंडर होना जो है कुकिंग में यूज करते हैं अपन, अगर वो गैस सिलेंडर होना तो गैस सिलेंडर प्रोवाइड करता, मगर सिलेंडर किसका रहता, उसका रहता, वापस देना उसको। आपको रेती होना बोल के बोले 100 टन की रेती होना बोले, मैं क्या करा ट्रैक्टर भेज दिया रेती, ट्रैक्टर मेरी बोल के नहीं बोल सकते, ट्रैक्टर को वापस भेजना पड़ता, नहीं मैं नहीं बेचता हूँ रख लेता हूँ बोले तो नहीं जमता। तो दिस इज कॉल्ड एज योर रिटर्नेबल ट्रांसपोर्ट स्टॉक। मतलब क्या है, आपके परमिशन में ट्रैक्टर रेती लेके आई, रेती को रख लेना, ट्रैक्टर को भेज देना, नहीं मैं ट्रैक्टर को भी रख लेता हूँ बोले तो नहीं जमता। तो दैट इज कॉल्ड एज रिटर्नेबल ट्रांसपोर्ट स्टॉक। सो नेक्स्ट सब कॉन्ट्रैक्टिंग प्रोसेस, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रोसेस। जैसे कंसाइनमेंट बोला मैं आपको, जैसे थर्ड पार्टी प्रोसेसिंग बोला, ये भी वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस।
ये प्रोसेस इसको बिकॉज आप जब देखेंगे एक बिजनेस सिनेरियो को देखो तो आप सजेस्ट करना कि भाई आपका बिजनेस सिनेरियो जो है सब कॉन्ट्रैक्टिंग का है, या आपका बिजनेस सिनेरियो जो है बेसिक प्रोक्योरमेंट है, या आपका बिजनेस सिनेरियो एक्सटर्नल प्रोक्योरमेंट है, या आपका कंसाइनमेंट प्रोसेस क्या है, आप डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है सब कॉन्ट्रैक्टिंग। सब कॉन्ट्रैक्टिंग क्या होता है सब कॉन्ट्रैक्टिंग में बोले तो आप देखो जीएचएमसी को बोले कि भाई यहाँ पे जीएचएमसी का काम है कि आपके सिटी के अंदर जो है रोड्स को मेंटेन करना, कचरा साफ सफाई करना, नालों को जो है साफ करना, प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी जो है लाइंस वगैरह जो मेंटेन रहना, उसके पोल्स जो है क्या बोलते मेंटेन रहना, और रोड्स वगैरह मेंटेन रहना, साफ सफाई रहना, रोड्स अगर कहीं डैमेज हो गए तो रिपेयर करना, कहीं फ्लाईओवर्स की जरूरत है तो फ्लाईओवर्स को बनाना, कहीं जो है उसको अंडरपास की जरूरत है तो अंडरपास बनाना। दिस इज ऑल द रिक्वायरमेंट। ओके, जेएचएमसी को बनाना होता है। जेएचएमसी क्या करता है, उन्हें खुद नहीं बनाता, उसके पास एम्प्लॉइज नहीं है बनाने के लिए। उन्हें क्या करता है, एक कॉन्ट्रैक्टर को बुलाता, कंस्ट्रक्शन वाले को, टाटा वाले को बुला सकता है उन्हें, एलएनटी वाले को बुला सकता है उन्हें। देखो हैदराबाद का मेट्रो का प्रोजेक्ट देखिए आप, ये मेट्रो का प्रोजेक्ट किसके अंदर है, तेलंगाना गवर्नमेंट बनाना, तेलंगाना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी कि मेट्रो बनाना है, या जेएचएमसी की जिम्मेदारी है कि मेट्रो बनाना है। तो तेलंगाना गवर्नमेंट या जेएचएमसी क्या करती, उन्हें जाकर नहीं बनाती, क्या करती, उन्हें सब कॉन्ट्रैक्टिंग करती, मतलब बाहर एक कॉन्ट्रैक्टर को देती है, उसको बोलती है कि अरे भाई देख मेरे को जो है फलाना जगह फ्लाईओवर बनाना है, या फलाना जगह मेट्रो का ट्रेन का जो ट्रैक बनाना है, या मेट्रो स्टेशन बनाना है मेरे को, या अंडरपास बनाना है, या मेरे को फलाना जगह वाटर का टैंक बनाना है, तो ये काम कर, ये काम के लिए मैं कोई इतने पैसे देता हूँ, तेरा कोटेशन क्या है बोल, वो कोटेशन एक्सेप्ट करने के बाद उसको देते। दिट इज कॉल्ड एज सब कॉन्ट्रैक्टिंग प्रोसेस। The subcontracting process means the vendor or the subcontractor receives components from the ordering party with the help of which produces a product. कभी कभी क्या होता है सबकॉन्ट्रैक्टिंग में, क्या होता है मटेरियल मैं सप्लाई करता हूँ उसको, जैसा मैं आपको बोला कि भाई मेरे को जो स्टिचिंग कराना रहता, कपड़े स्टिचिंग कराना है एक टेलर के पास, यूनिफॉर्म्स का ऑर्डर आ गया, तो टेलर को जो यूनिफॉर्म्स का जो मटेरियल होना वो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ उसको। ऑर्डर मेरे को आया था, मैं अगर ऑर्डर पास करा उसको, सब कॉन्ट्रैक्टर को पास करा, मगर टेलर से वाले क्या बोला कि क्लॉथ उन्हें दूसरे का खरीदने की जरूरत नहीं, क्लॉथ मैं प्रोवाइड करा, मतलब रॉ मटेरियल मैं दिया उसको, तो उसको फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाना है, मतलब वो क्या बनना, वो यूनिफॉर्म बनाना है और डिलीवर करना है उसको, इसको क्या बोलते हैं सब कॉन्ट्रैक्टिंग बोलते हैं, याद रखिए। तो सब कॉन्ट्रैक्टर में क्या होता है, द वेंडर द सब कॉन्ट्रैक्टर रिसीव्स कंपोनेंट्स फ्रॉम द ऑर्डरिंग पार्टी। वेंडर कौन है, टेलर वेंडर है, और वेंडर को कहां से मिलता है, रॉ मटेरियल मैं देता हूँ उसको, ऑर्डरिंग पार्टी मैं हूँ, ऑर्डरिंग पार्टी, विद द हेल्प ऑफ व्हिच इट प्रोड्यूसेस ए प्रोडक्ट। द प्रोडक्ट इज ऑर्डर्ड बाय योर कंपनी थ्रू ए परचेज ऑर्डर। तो कैसा जो है ऑर्डर को रेस करे, कस्टमर को जो होना है उन्हें कैसा प्लेस करा, एक परचेज ऑर्डर प्लेस करता। तो मैं जो है मैं क्या करता हूँ, मैं भी एक परचेज ऑर्डर के थ्रू प्रोसेस कर लेता हूँ। सो दिस may happen, the purchase order will always be a document, you know, with whom you can communicate with a supplier or subcontractor. Okay, so subcontractor को एक ऑर्डर हम प्लेस कर दिए, बोले कि भाई तेरे को ब्रिज बनाना है, तो उन्हें आगे ब्रिज बना देता। सो राइट, दिस इज द वन। सो नेक्स्ट, the components required by the vendor seller to manufacture the ordered product are listed in the purchase order and provided to the subcontractor. वो सबकॉन्ट्रैक्टर क्या करता हूँ मैं, क्या क्या होना है एक ऑर्डर में जो है लिख के दे देता हूँ उसको, बोल देता हूँ कि भाई देख ये मेरी रिक्वायरमेंट है, तो मेरे को देखो ये चीज़ें बनाना बोल के सबकॉन्ट्रैक्टर बोल देता हूँ मैं। मतलब अब यूनिफॉर्म का जो एग्जाम्पल लिया मैं, तो टेलर वाले को मैं बोल रहा हूँ कि भाई देख मेरे को जो है ये कंपनी से, ये फलानी कैपजेमनी कंपनी से मेरे को ऑर्डर आया कि उन लोगों को इतने यूनिफॉर्म्स होना कहते हैं, बच्चों को इतने होना, बच्चों को इतने होना, उन लोगों की सजा ये है, तो वो इनपुट पूरा मैं देना और रॉ मटेरियल मैं देना। वो इनपुट्स मैं दिया उनको, उस डायमेंशन मैं दिया उसको, और रॉ मटेरियल मैं दिया उसको, बोला के फाइनल प्रोडक्ट बनाना है तेरे को। वो किस में मेंटेन करा, मैं परचेज ऑर्डर में मेंटेन करके भेजा मैं उसको, तो वो परचेज ऑर्डर को प्रोसेस करता है, बाद में बिल मेरे को करता हूँ मैं, बाद में क्या करता हूँ मैं जाके कैपजेमनी वाले को बिल करता हूँ। दिस इज गोना हैपन इन सब कॉन्ट्रैक्टिंग प्रोसेस। सब कॉन्ट्रैक्टर में क्या होता है, देखिए आप टैक्सेस पे करें गवर्नमेंट को, वो टैक्सेस क्या करती है गवर्नमेंट, टैक्सेस यूज करके सब कॉन्ट्रैक्टर को बुला के उसको पैसे देती कि तू जाके यहाँ ब्रिज बना बोल के। सो दिस इज व्हाट विल हैपन सब कॉन्ट्रैक्टर। नेक्स्ट, और एक स्पेशल प्रोक्योरमेंट है, उसको हम बोलते हैं स्टॉक ट्रांसफर ऑर्डर, स्टॉक ट्रांसपोर्ट ऑर्डर बोलते हैं, एसटीओ बोलते हैं। इट इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी इन एसएपी, एसटीओ, स्टॉक ट्रांसपोर्ट ऑर्डर। ये स्टॉक ट्रांसपोर्ट ऑर्डर किसको बोलते हैं, इसके अंदर मीनिंग है स्टॉक ट्रांसपोर्ट, ये इट इज आल्सो कॉल्ड, इट इज आल्सो ए काइंड ऑफ परचेज ऑर्डर। रिलीज ऑर्डर भी रहने दो या स्टॉक ट्रांसपोर्ट ऑर्डर भी रहने दो, इज ए पार्ट ऑफ परचेज ऑर्डर, इसको परचेज ऑर्डर बोलते हैं, नथिंग बट। रिलीज ऑर्डर कब बोलते हैं, अगर कॉन्ट्रैक्ट है वो वेंडर से तुम्हारा, तो उसको अगर तुम ऑर्डर को रिलीज कर रहे हो तो उसको रिलीज ऑर्डर बोलते हैं, उस क्या क्या क्वांटिटी होना पर्टिकुलर ड्यूरेशन में। और स्टॉक ट्रांसपोर्ट ऑर्डर क्या बोलते हैं, बोले तो स्टॉक्स ट्रांसफर कर रहे हैं आप, मतलब मैं जैसे बोला आपको, टाटा ग्रुप है, टीसीएस कंपनी को जो है टाटा के जो है कार होना है, तो कौन प्रोवाइड कर रहा, टाटा की जो कारों की जो कंपनी है टाटा की, वो टाटा मोटर्स कंपनी क्या कर रही, कारा प्रोवाइड कर रही किसको, टीसीएस कंपनी को। इसको क्या बोले थे हम लोग, इंटरनल प्रोक्योरमेंट बोले थे। इसके अंदर
की ब्रांच को भेजना है, तो वहां से यहाँ को भेजता। इसको बोलते हैं स्टॉक ट्रांसपोर्ट ऑर्डर। स्टॉक ट्रांसपोर्ट ऑर्डर में क्या होता है बोले तो, स्टॉक्स को जो है इंटरनली अगर मूव करना है एक प्लांट से दूसरे प्लांट को, आपके ऑर्गेनाइजेशन में, याद रखिए आपके ऑर्गेनाइजेशन में एक प्लांट से दूसरे प्लांट को अगर फॉरवर्ड करना है, तो आप क्या करते हैं, उसको परचेज ऑर्डर नहीं बोलते। परचेज ऑर्डर कब बोलेंगे आप, आपके कंपनी से हटके बाहर से आप खरीद रहे हैं, एक्सटर्नल प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं, तो दैट इज ओनली कॉल्ड एज पीओ, परचेज ऑर्डर बोलेंगे। आप विद इन द कंपनी कर रहे हैं, आपके ग्रुप के अंदर परचेजिंग कर रहे हैं, इसको आप बोलेंगे स्टॉक ट्रांसपोर्ट ऑर्डर। तो एक प्लांट से दूसरे प्लांट को जो है स्टॉक को मूव करने को जो है स्टॉक ट्रांसपोर्ट ऑर्डर बोलते। समझ रहे ना। कारा जो है कहां से मूव हो रहे, टाटा मोटर से कारा मूव होकर कहां को आ रहे हैं, टीसीएस को आ रहे हैं। दिस इज कॉल्ड एज स्टॉक ट्रांसफर। कभी कभी क्या होता है, ऐसा भी होता है कि देखो हैदराबाद में जो टाटा मोटर्स की वेरोस की प्लांट है, मुंबई में वेरोस की प्लांट है, टाटा कार जो ज्यादा सेल हैदराबाद में हो रही, यहाँ पे स्टॉक्स खत्म हो गए मेरे वेयरहाउस में। मैं क्या करा, यहाँ के वेयरहाउस से फोन करा मुंबई के वेयरहाउस वाले को, भाई देखो हमारे पास जरा कार्स के स्टॉक्स नहीं है, जरा स्टॉक्स आप भेजो। ऐसा फोन करके बोलते ना अपन, ये है ना प्रोसेस नॉर्मली होना है। तो ऐसा तो ऐसे भी में क्या होता है ऑफिशियली, आप क्या करते हैं, स्टॉक ट्रांसपोर्ट ऑर्डर भेजते वो प्लांट को। मुंबई में जो प्लांट है ना, वहाँ पे कहीं को बोलते उसका स्टॉक चेक करते आप, वो प्लांट में कितना स्टॉक है। ऐसे में दिखता है आपको कि मुंबई के प्लांट में देखो भाई 100 कारा पड़े हुए है, पुणे के प्लांट में जो है 50 कारा है, दिल्ली के साइड में 50 कारा है। ये आपको एसएपी में दिखता है, रियल टाइम में दिखता है आपको। मैं बोला ना, एसएपी इज एन एप्लीकेशन हु कैन प्रोवाइड रियल टाइम डेटा। आप कहीं भी बैठ के देख सकते हैं आप कंपनी में कहाँ का कितना स्टॉक है। तो मैं देखा कि मुंबई के अंदर 100 कारा है, 50 मंगा ले सकता हूँ मैं मेरे के लिए। तो मैं क्या करता हूँ, वहां के लिए एक स्टॉक ट्रांसपोर्ट ऑर्डर बनाता हूँ, बना के भेजता हूँ। अरे भाई देख हमारे 50 कारा भेजो बोल के स्टॉक ट्रांसपोर्ट ऑर्डर, मतलब परचेज ऑर्डर है आप भेजने का। वो परचेज ऑर्डर को हम क्या बोलते हैं, स्टॉक ट्रांसपोर्ट ऑर्डर बोलते हैं। याद रखिए एक चीज, इट इज अ स्पेशल प्रोक्यूरमेंट। स्टॉक ट्रांसफर बिटवीन टू एंटिटीज, दो कंपनियां या दो प्लांटा होते हैं, दो आपके ग्रुप के अंदर ही रहते हैं, उन लोगों के बीच में स्टॉक्स अगर मूव हो रहे हैं, एक वेयरहाउस और एक वेयरहाउस को मूव हो रहे हैं, तो विच इज कॉल्ड एज स्टॉक ट्रांसपोर्ट ऑर्डर। ठीक है, ये है आपका स्पेशल प्रोक्योरमेंट, विच इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्योंकि ये जितना भी प्रोक्योरमेंट साइकिल में डिस्कस कर रहा हूँ आपके सामने, या जो प्रोसेस डिस्कस कर रहा हूँ, सो यही साथ में आपको साथ में आपको आता। ठीक है, so this is what you are going to face in an SAP. When you wanted to configure SAP, you have to familiar with all these processes. Okay, so the next. So what's the time now? So because this is a new topic now, SAP enterprise structure. So if you have, so can we stop it here now? Because enterprise structure जो topic है, ये एक completely new topic है, ये SAP का दूसरा हिस्सा है completely, समझे, new part है. Yeah, I think it's enough for today. We can stop at this stage and we can answer your queries. Okay. So like now if you have any queries, you can ask everybody. If you can unmute yourself and you can ask, or if you want to type, you can type it on the chat box. Has anybody? Yeah, so I do have PO is not required. ये तो डिस्कशन हो गया। एक क्वेश्चन यहाँ पे चैट बॉक्स में है कि कैन यू टेल मी द डिफरेंस बिटवीन थर्ड पार्टी एंड सब कॉन्ट्रैक्ट्स। वो जनाब डिफरेंस मैं जो बोला, थर्ड पार्टी प्रोसेसिंग में क्या होता, थर्ड पार्टी प्रोसेसिंग में देखो मेरा एक सेल्स डिपार्टमेंट है, समझो मेरा मतलब फ्लिपकार्ट एक काइंड ऑफ सेल्स डिपार्टमेंट है, जहाँ पे फ्लिपकार्ट पे प्रोडक्ट सेल होते हैं। तो उन्हें क्या करता भाई, उसके पास मैं कस्टमर हूँ, कस्टमर क्या करता हूँ मैं एक फ्लिपकार्ट को रिक्वेस्ट भेजा, बोले साहब भाई मेरे को देखो एक आईफोन प्रोवाइड करो मेरे को। तो आईफोन क्या करता है, वो आईफोन का जो सेलर था पर्टिकुलरली, आप देखेंगे, आप जो है आपका फ्लिपकार्ट ओपन करेंगे, कोई सा भी एक मोबाइल क्लिक करो या कोई सा भी एक प्रोडक्ट क्लिक करो, वहाँ पे एक डिफरेंट डिफरेंट सेलर आ रहे थे नीचे, वो सेलरों के नाम आ रहे थे नीचे, सेलरों के नाम आ रहे थे, आप देखिए। सो इफ यू कैन ओपन योर फ्लिपकार्ट और अमेजन, इफ यू कैन सी डिफरेंट डिफरेंट सेलर्स। ओके, वो सेलर क्या करते हैं, कोई अग्रवाल के नाम से रहता, कोई B&M के नाम से रहता, उन्हें एप्पल कंपनी के नाम से नहीं रहता, सेलर वो दूसरा सेलर रहता, उन्हें प्रोसेस करता आपके प्रोडक्ट को, उन्हें वो आईफोन वो सेलर क्या करता, आपके आईफोन को फॉरवर्ड करता। कुछ प्रोडक्ट ऐसे रहते, फ्लिपकार्ट वाला खुद अपने वेयरहाउस में रख लेता, वहां से आपको डायरेक्टली भेजता, सेलर के पास से ला लेके वेयरहाउस में रख लेता स्टॉक, वहां से उन्हें प्रोसेस करता, ऐसे होते हैं। तो दिस काइंड ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड एज थर्ड पार्टी प्रोसेसिंग। सब कॉन्ट्रैक्टिंग में क्या होता, सब कॉन्ट्रैक्टिंग में रिक्वेस्ट तुम आपको दे रहे हैं, तो तुम क्या कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर करा रहे, बाजू वाले को बोल के बना के, फिर क्या कर रहे हैं, उसके पास से तुम लेके जाके कस्टमर को दे रहे हैं, उन्हें लेके जाके नहीं देता। याद रखिए, थर्ड पार्टी प्रोसेसिंग में क्या होता, मेरे को रिक्वेस्ट आता, मैं क्या करता हूँ, थर्ड पार्टी को भेजता हूँ समझिए, मेरे को कपड़े मेरे को एक ऑर्डर आया कि भाई इतने जो है मेरे को यूनिफॉर्म सोना बोल के मेरे को ऑर्डर आया। मैं क्या करा, ये ऑर्डर को सीधा सीधा क्या करा, मैं मेरे पास ना मटेरियल है ना मैं स्टिच कर सकता हूँ, मैं सीधा सीधा क्या बोला,
मैं बाजू वाले जो है मेरा जो वेंडर रहता, वेंडर को बोला भाई देखो कंपनी को इतने मटेरियल होना है, उसको मटेरियल सप्लाई कर दे पूरा। उन्हें क्या करता, मटेरियल पूरा सप्लाई करता उसको, ठीक है। कभी कभी क्या होता, उन्हें जो सप्लाई करा उन्हें बिल करता कस्टमर को, या मैं बिल करता हूँ, मगर मेरा कमीशन तो रहता सेलर से हमेशा। तो दिस इज कॉल्ड एज थर्ड पार्टी प्रोसेसिंग। थर्ड पार्टी प्रोसेसिंग में या जो है थर्ड पार्टी में क्या होता बोले तो सेल्स ऑर्डर को मैं प्रोसेस नहीं करता हूँ, मगर मेरा दूसरा सब कॉन्ट्रैक्टर रहता या दूसरा जो है वेंडर रहता, उन्हें प्रोसेस करता। तो ये डिफरेंस होता है इसके अंदर। और कुछ सर एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के बीच में क्या डिफरेंस है सर? वही सर डिफरेंस एग्री है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। मैं सिंपल बोला आपको, एक कॉन्ट्रैक्ट एग्री में एक कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है बोले तो, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो है मैं शेड्यूल के लाइन से टाइम डिफाइन नहीं करता हूँ, मैं पर्टिकुलर टाइम पे मैं कितना होना सीधा दे दो बोल के नहीं बोलता हूँ। खाली कॉन्ट्रैक्ट पीरियड क्या होता है, खाली जो पीरियड है एक अग्रीमेंट बना लेते हैं आपसे, एक कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हैं। एक कॉन्ट्रैक्ट क्या बना लेते बोले तो, देख भाई मेरे को जितने भी जो है आप देखे होगा कि तेलंगाना गवर्नमेंट जो है पार्टनरशिप कर ली फलाना जो है क्या बोलते हैं कंपनी से, कि तेलंगाना कंपनी तेलंगाना गवर्नमेंट को जितने भी आईटी के इश्यूज है, देखो आप तेलंगाना का जो पासपोर्ट सेवा केंद्र है वो कौन सर्व करता मालूम आप लोगों को? पासपोर्ट के जो क्या बोलते हैं पासपोर्ट ऑफिस को आप जाएंगे तो वहाँ के एम्प्लॉयज कौन है, तेलंगाना गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज है या कोई दूसरे एम्प्लॉयज है? कोई बोल सकते हैं इसके अंदर? दूसरे प्राइवेट टीसीएस के एम्प्लॉयज, थर्ड प्राइवेट पार्टी। प्राइवेट एम्प्लॉयज कौन है वो लोग? टीसीएस के लोग हैं। टीसीएस टीसीएस को कॉन्ट्रैक्ट मिला हो, टीसीएस के एम्प्लॉयज वहाँ पे आप देखेंगे उनके गलियों में तेलंगाना गवर्नमेंट की आईडी नहीं रहती, टीसीएस की आईडी रहती उनके गलों में। तो टीसीएस कौन है? टीसीएस जो गवर्नमेंट की कंपनी नहीं है भाई। थर्ड गवर्नमेंट क्या पार्टी। करा, गवर्नमेंट का रिक्वायरमेंट था कि वो पासपोर्ट का जो सेवा केंद्र है चलाने की जिम्मेदारी गवर्नमेंट की थी। गवर्नमेंट क्या करा, सब कॉन्ट्रैक्टिंग करा उसको। टीसीएस वाला आके वहाँ पे लगा लिया उन्हें। उन्हें क्या करता, उन्हें सॉफ्टवेयर सोल्यूशन प्रोवाइड करता। उन्हें क्या करता, आपका पासपोर्ट का जो डेटा आप अप्लाई करे वो डेटा वेरीफाई करता है, एग्नेस्ट डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके चलो ये कैंडिडेट परफेक्ट है करके बोल देता। जब क्या करती वो गवर्नमेंट जो मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट रहता जो इशू करने का, वो मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट क्या करती, टीसीएस का इन्फॉर्मेशन ले लेके उन्हें इशू करती। समझे? दिस इज कॉल्ड एज थर्ड पार्टी प्रोसेसिंग, सब कॉन्ट्रैक्टिंग। सॉरी, एनीथिंग एल्स? भाई ये यूटिलिटीज जो रहते ना, वाटर गैस और इलेक्ट्रिसिटी, इसके यस, लिए पीओस इश्यू नहीं होते ना भाई? ये पाइपलाइन पूरे हैंडलिंग। हाँ, उसके अंदर क्या होता बोले तो, उसके अंदर पाइपलाइन हैंडलिंग में क्या होता, पाइपलाइन सेटलमेंट होता। उसके अंदर क्या होता पहले जो है ये इवन ऑल ये स्पेशल प्रोक्योरमेंट जितने भी स्टेजेस है, ये हर स्टेज के अंदर ऐसी होता है कि सेटलमेंट होता, पाइपलाइन सेटलमेंट होता, कंसाइनमेंट सेटलमेंट होता। पाइपलाइन हैंडलिंग में क्या होता, एक ही बार आप पीओ जनरेट करते हैं। उसके अंदर क्या होता बोले तो, उसके अंदर पीओ नहीं बोलते हम, एक परचेज इन्फो रिकॉर्ड बोलते हैं, पाइपलाइन इन्फो रिकॉर्ड बोलते हैं उसको। ये पाइपलाइन इन्फो रिकॉर्ड में क्या होता है बोले तो, एक कॉन्ट्रैक्ट के जैसा बोले, एक परचेजिंग डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर क्या होता, मैं इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से कुछ जो है अग्रीमेंट ले लिया, एक इन्फो रिकॉर्ड बना दिया कि भाई देखो मेरे को जो है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करो बोल के, एक समझिए लगा कॉन्ट्रैक्ट एक परचेजिंग इन्फो रिकॉर्ड में मेंटेन कर लेता। तो उसके बाद क्या होता, बेस्ड ऑन दैट परचेजिंग इन्फो रिकॉर्ड उन्हें क्या करता बोले तो, अपने को हमेशा सप्लाई करते रहता। उसको मैं सेटलमेंट कैसे करता हूँ, कंसाइनमेंट सेटलमेंट बोल के एक रहता एसएबी के अंदर। सो व्हेन इट कम्स टू ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट हम लोग वहां पे डिस्कस करेंगे। ये दिस स्टेज तुमको क्या समझ, हम लोग को क्या समझना है कि ये प्रोसेस क्या है हमको समझना है, उसके अंदर क्या क्या ट्रांजेक्शन रहते हैं, व्हाट काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट्स विल बी जनरेटेड। ये हम लोग जब पर्टिकुलर प्रोसेस आएगा तो तब हम लोग डिस्कस करेंगे। एनीथिंग एल्स? ओके। Sir, do we have session tomorrow? Inshallah, tomorrow we'll be having session. Same time? Yes, it will be same time. So 8 to 9 हो सकता, 8 to 9:30 based on it. So anybody more? और किसी के पास अगर yeah, we have Charan in this meeting. Charan, can we have your brief introduction so that we'll get to know to each other a little bit? Charan, I got a question in the chat box, like in internal procurement is there a PO processing? इंटरनल प्रोक्योरमेंट के अंदर एसटीओ रहता। एसटीओ को भी जो है एसटीओ बोलते हैं उसको, पीओ नहीं बोलते हम। पीओ प्रोसेसिंग जो बोलते हैं उसको एसटीओ बोलते हैं। एसटीओ को क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे क्रिएट करते हैं, वहाँ पे जो है एसटीओ को प्रोसेस करता, उसमें भी ट्रैकिंग होती है। इसके अंदर भी वीडियो ऑफ ट्रैफिक, इनबाउंड प्रोसेस आउटबाउंड प्रोसेस बोल के रहता है। इनबाउंड प्रोसेस आउटबाउंड प्रोसेस, दिस कैन बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट स्टेजेस। इनबाउंड प्रोसेस आउटबाउंड प्रोसेस क्या है बोलो तो, इसके अंदर ट्रैकिंग होती है। ट्रैकिंग आपके प्रोडक्ट जो है आउटबाउंड बोले तो आपके पास से कोई प्रोडक्ट बाहर जा रहा है तो इसको आउटबाउंड प्रोसेस बोलते हैं। इनबाउंड बोले तो आपके पास कुछ प्रोडक्ट आ रहा है, इसको इनबाउंड प्रोसेस बोलते हैं। इनबाउंड एडॉक्स, आउटबाउंड एडॉक्स, ऐसे टॉपिक्स है जो हम सामने डिस्कस करेंगे। एट दिस स्टेज वी डोंट नीड दिस। अटेंडेंस फॉर्म विल बी शेयर्ड इन योर ग्रुप। ओके, और कुछ सवाल आता है? अच्छा, मुबिन भाई कुछ बता रहे थे।
जी नहीं, एक्चुअली चरण के नाम से कोई इसमें ज्वाइन हुए, तो मैं सोचा कि नए हैं तो थोड़ा अपने एक इंट्रोडक्शन हो जाए, ब्रीफ इंट्रोडक्शन, तो शायद इट विल बी हेल्प अस टू अंडरस्टैंड. Yes. Yeah. I can Charan, see Charan here in the in the participants. Charan, if you can unmute yourself and if you can give your introduction. If you don't want to give an introduction, you can type it in the chat box. Charan, because we are familiar with the remaining names. I can see everybody here. That's it. Any more queries? Now we can close it. Now it's 9:34 already. So so today, whatever the discussion has happened, it is always it is totally regarding your procurement process. So the overview is like simply we discussed about basic procurement and as well as special procurement. In basic procurement, two types of procurements you are having: procurement for stock versus consumption. Procurement for what is the next one? Procurement for External. one is your Internal and external. consumption. The second is external versus internal procurement. What will happen in stock versus consumption? In stock, what will happen? You are going to stock the materials. In consumption, you are going to directly consume the material, like your electricity. So in external versus internal procurement, what will happen? In external procurement, you are going to buy products from the external vendors. In internal procurement, what is going to happen means you are going to buy the materials internally from your group, from your company. Within your company, if you have different kind of groups who are going to supply the required materials, you are going to buy from that particular plant only. आपके पास कुछ प्लांट है, समझे कि टाटा की प्रोजेक्ट्स है, टाटा की प्रोजेक्ट्स चल रही हैं, टाटा को जो है स्टील की जरूरत है, टाटा स्टील से टाटा को जो है जो रॉड्स होना है, जो स्टील मटेरियल होना है, वो प्रोवाइड करती. दिस इज कॉल्ड एज योर इंटरनल प्रोक्योरमेंट. ओके, तो अगर कुछ और मजीद सवाल है, सो वी कैन सी इन द नेक्स्ट सेशन. ओके, एनीथिंग एल्स? No, sir. Thank you, sir. So our next topic will be enterprise structure. Okay, so अभी तक जितने भी मतलब हमारे प्रेजेंटेशन हुए उसके ऊपर अगर कुछ भी सवाल है, सो यू कैन पिंग मी इन व्हाट्सएप, यू कैन सेंड मी एन ऑडियो, आई कैन रिप्लाई टू देम. Sir, PDF share करो sir. What is in group also, I can respond to them. Sir, PDF share करिए sir. ठीक है, I'll share the PDF, no problem. So उससे पहले like noted down some questions, एक कुछ differences. देखिए आप लोग अभी जो अब तक जो डिस्कशन हुआ इसके अंदर से देखिए वन क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड इज लाइक, एक तरफ से आप लोग प्रोक्योरमेंट बोल रहे हैं और परचेजिंग बोल रहे हैं, ये क्या है डिफरेंस? प्रोक्योरमेंट को परचेज, एक प्रोक्योरमेंट को या परचेज को डिफरेंस क्या है? प्रोक्योरिंग बोलते हैं अपन, परचेजिंग बोलते हैं, बोथ लोग सिमिलर, मगर उसके अंदर डिफरेंस क्या है? दैट इज वन डिफरेंस यू नीड टू आइडेंटिफाई. दैट इज वन क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड. आप लोग क्या है एवरीडे I'll give some questions and you need to work on it. आप लोग गूगल करिए उसको, आपको सवाल तो उसके आंसर्स मिलेंगे बेस्ड ऑन योर सेशन. I'll ask some questions. ओके, एक है आपका प्रोक्योरमेंट को और जो है परचेजिंग को डिफरेंस क्या है, ये डिफरेंस आपको आइडेंटिफाई करिए. सेकंड, जो पहला सवाल जब मोबिन भाई का था, ERP एंड SAP, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन ERP एंड SAP? that will be my first question. The second question will be what is the difference between procurement and purchasing? This will be my second question. The third question will be what is the difference between production and manufacturing? कभी मैं बोल रहा हूँ कि एक प्रोडक्ट बोल रहा हूँ, कभी मैं क्या बोल रहा हूँ, उसको मटेरियल भी बोल रहा हूँ. सो एक मैन्युफैक्चरिंग, आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बोलते हैं या प्रोडक्शन इंडस्ट्री बोलते हैं, प्रोडक्शन किसको बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग किसको बोलते हैं? दैट इज माय थर्ड क्वेश्चन. एंड द फोर्थ क्वेश्चन विल बी व्हाट इज मटेरियल को एक प्रोडक्ट को क्या डिफरेंस है, मटेरियल किसको बोलते हैं, प्रोडक्ट को किसको बोलते हैं. So this kind of 4 questions I do have on my mind for now. So आप इस क्वेश्चंस को जो है सर्च करिए, उसके बाद if you got any answers you can send me individually, or I'll ask you in the next session, you can give me the answers. I can ask random people also. मैं जो है यहाँ पे जो random people है उन लोगों का नाम जो है सेलेक्ट करूंगा, उन लोगों को जो है पूछूंगा. ठीक है ना? पहला सवाल ये है कि what is the difference between ERP and SAP? एक ERP को और SAP को डिफरेंस क्या है? दूसरा सवाल ये है प्रोक्योरमेंट और परचेजिंग, ये दोनों का डिफरेंस क्या है? परचेज बोले तो शॉर्ट टर्म एंड प्रोक्योरमेंट बोले तो लॉन्ग टर्म. सिमिलरली ऐसे भी हो सकता. आई नीड सम और अच्छे आंसर्स. थोड़ा आप लोग गूगल करिए. ओके सर. सर सैप महंगा सॉफ्टवेयर है, तो ERP सर स्मॉल स्टेट के लिए यूज किया जाता है. क्या बोले सर? सैप थोड़ा सा महंगा सॉफ्टवेयर रहता है, कॉस्टली रहता है, तो उसको मोस्टली जो इंडस्ट्रियलिस्ट यूज करते हैं. और ERP स्मॉल स्टेट की कुछ होलसेल टाइप. नहीं, इसके आंसर मेरे को अभी मत दीजिए आप लोग.
and Sir, sir, already के लिए knowledge हो सकता सर क्वेश्चन है। बोलिए I'll सर, answer in the next session, okay? एक क्वेश्चन बोलिए सर, मेरा दो ये ही हुए पहला सर। वाला के ERP का SAP का डिफरेंस, दूसरा है प्रोक्यूरमेंट और प्रोक्यूरमेंट परचेजिंग को, और थर्ड वाला क्या है? क्या है? सर इफ पॉसिबल आप प्रोडक्शन व्हाट्सएप पे और अपडेट कर मैन्युफैक्चरिंग देते के बीच बेटर में रहेगा। डिफरेंस मालूम होना है। जरा क्वेश्चन सुन लेने दो भाई, उसके बाद बोलो। जी, तो द थर्ड क्वेश्चन इज प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग के बीच में डिफरेंस क्या है। तो उसके बाद जो फोर्थ मेरा क्वेश्चन है, एक प्रोडक्ट को और एक मटेरियल को डिफरेंस क्या है, ये चीज़ आप समझ जाएंगे तो देन इट विल बी इजियर फॉर मी टू मूव फॉरवर्ड। तो बेसिक क्वेश्चन है, इसके अंदर भी देखिए, और जो भी सेशन मैं चलाया इसके अंदर में मैं रैंडम कभी भी सवाल कर सकता हूँ, इसके अंदर कभी भी जो नेक्स्ट सेशन में भी सवाल कर सकता हूँ मैं कि भाई फलाना स्ट्रक्चर में क्या हुआ था, फलाना जगह बेसिक प्रोक्यूरमेंट में क्या होता है या एक्सटर्नल प्रोक्यूरमेंट में क्या होता। सो व्हाट इज कॉल्ड एज कंसाइनमेंट प्रोक्यूरमेंट। सो द वॉट एवर वी हैव डिस्कस्ड इन नाउ, उसके अंदर ही मैं सवाल कर सकता हूँ आप लोगों को। सो इफ यू कैन आंसर दैट इज फाइन, if you are not answering, can random person can answer on this, okay? So that's it. So जो लोग अभी रिसेंटली जो लास्ट 2 सेशन से 3 सेशन ज्वाइन नहीं करे, उन लोग के लिए जो है वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल है। You can ping me separately, I can forward you those video links and as well as the PPTs, whatever the material we had. So ये PPT को भी जो है अब मैं शेयर करूंगा, and विकार is gonna share you the link for your attendance form. ऑलरेडी अटेंडेंस फॉर्म ग्रुप के अंदर है, और फिर भी शेयर किया जाएगा जो भी नए ऐड हुए, वो ग्रुप लिंक को क्लिक करिए, आपका अटेंडेंस दीजिए, then only you will be counted as a participant, okay? So जिसको हम सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेंगे at the end, okay? Right, so that's it for today. So if any queries are there, if you can note it down and we can answer it in the next session. चलिए, सो ग्रुप के अंदर जो है चैट बॉक्स में भी आगे अपने वो क्वेश्चन का डिफरेंसेस। सो इसके जो है ये क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन है हमारे, दैट यू फाइंड द डिफरेंसेस, यू आइडेंटिफाई द डिफरेंसेस, व्हाट आर दीज। सर ये इंस्टॉलेशन कब तक करा लेना सर? इंस्टॉलेशन मैं बोला ना आप लोगों को, संडे कल तक जो करा लीजिए आप। हालांकि मैं भी जो इंस्टॉलेशन कराना है मेरे पर्सनल लैपटॉप के अंदर, आई डू हैव SAP इंस्टॉल इन माय ऑफिस सिस्टम बट नॉट इन माय पर्सनल लैपटॉप। उसको जो है आई वाज नॉट यूजिंग माय पर्सनल लैपटॉप, अभी उसको जो है लाइक इट्स माय ओल्ड लैपटॉप नाउ। सो आई अपडेटेड दैट लैपटॉप इन न्यू कॉन्फ़िगरेशन, लाइक उसको SSD चेंज करा, मैं उसका रैम अपडेट करा 4 GB से 8 GB, एंड देन टुमारो आई एम गोना विजिट अमीरपेट एंड वेयर आई विल गेट इंस्टॉल्ड इन SAP। सो मंडे से जो है आउट भी नीड है SAP इन योर सिस्टम। SAP अगर आपके अंदर लैपटॉप में है तो इट विल बी ईजियर। मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे, तो आप क्या करेंगे, सेशन होते जो उसके अंदर प्रैक्टिस करेंगे। सो अगर आप डे टू डे प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो भूल जाइए, आपके SAP याद ही नहीं रहता। उसके बाद आपको टर्मिनोलॉजी याद रहते, मगर कैसा प्रैक्टिस करना, वो ट्रांजैक्शन जाके क्या करना, वो आपको याद नहीं रहता। अगर आप समझेंगे कि भाई मैं हफ्ते में एक बार प्रैक्टिस करता हूँ, या नहीं तो जो है महीने के क्लास पूरी होने के बाद प्रैक्टिस करता हूँ, तो दिस इज नॉट गोना हैपन। सो एवरी डे यूनिट टू प्रैक्टिस। मेरी क्लास होते ही जो है आप 8 to 9 अगर क्लास हो गई तो 9 to 9:30 या 9 to 10 यू हैव टू प्रैक्टिस इट। इफ इट इज गोइंग, अगर आप नेक्स्ट डे भी प्रैक्टिस करेंगे तो आप भूल जाएंगे। दिस इज गोना हैपन इन SAP, एंड नेक्स्ट डे आई एम नॉट गोना हेल्प यू इफ यू नॉट प्रैक्टिसिंग ऑन द सेम डे। आप सेम डे प्रैक्टिस करेंगे तो ही आपको प्रैक्टिस कर सकेंगे। यू विल गेट एन एरर, वो एरर पे हम डिस्कस करेंगे, मगर कैसा करना सर, फिर आप सवाल करेंगे नेक्स्ट डे, देन आई एम नॉट गोना हेल्प यू। सो यू हैव टू प्रैक्टिस इट ऑन द सेम डे। इफ यू आर गेटिंग एनी एरर्स, डेफिनेटली एरर आता आप लोगों को, 100 में से जो है 60 लोगों को या 40 लोगों को जो है उसके अंदर एरर आता, समझ में नहीं आता भाई एरर कहीं को आ रहा। सो दैट एरर वी कैन डिस्कस इन द क्लास। सब कोई कॉमन एरर आता हमेशा, ओके? तो जो रिपीटेड एरर्स होते हैं SAP के अंदर, जो भी एरर आता है वो एरर को कॉपी करना, नीचे नीचे जो एरर दिखा था आपको कॉपी करना, गूगल में माना सोल्यूशन मिल जाता है। याद रखिए चीज, हमेशा जो है मेरे पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। अगर कुछ भी एरर आया SAP के अंदर, एक अच्छी फंक्शनलिटी है, आपको सीधा नीचे कॉपी करना वो एरर को, टेक्स्ट रहता नीचे, दिस सप्लायर कांट बी यूज्ड फॉर दिस मटेरियल बोल के आता। तो क्या करना, वो एरर 301 एरर 201 एरर बोल के नंबर रहता है, वो पूरा मैसेज को कॉपी करना, लेके जाकर गूगल में पेस्ट करना, एंटर मारना, तो गूगल के अंदर सोल्यूशन आते हैं। वहाँ पे SAP के जो फोरम्स है, डिफरेंट फोरम्स, वहाँ पे हर चीज डिस्कस होता रियल टाइम में। हमको जो एरर्स आ रहे हैं वो भी हम लोग समझ में नहीं आ रहा तो क्या करते हैं, हम लोग जाके वहाँ पे पोस्ट करते हैं, तो वी विल गेट एन आंसर। सो दिस इज व्हाट गोना हैपन एवरी डे। तो हर दिन जो है हर एक को जो भी इशू आता है वो पोस्ट करते हैं, ये जमाने से चल रहा है चीज। तो आपको जो इशू आ रहा है वो नया इशू SAP में नहीं रहता हमेशा, वो इशू ऑलरेडी दूसरे को आगे रहता है, उन्हें उसका सोल्यूशन गूगल में ऑलरेडी डाल के रहता। तो दिस काइंड ऑफ इश्यूज यू विल फाइंड इन गूगल। सो अगर आपको वहाँ पे भी समझ में नहीं आ रहा तो यू कैन रेज मी एंड आई कैन एक्सप्लेन यू, ओके? चलिए, जज़ाकल्लाह खैर। ओके सर, वालेकुम अस्सलाम। चार क्वेश्चन का आंसर करना है।